So good evening, everyone. A very warm welcome to you all in this special session by Shakuntala ji on gemstones. We date back a few years now when I got introduced to the subject called astrology when I was running away from it. And I was pulled into the class of astrology, and that astrology class happened to be conducted by Shakuntala ji. And that turned out to be a turning point for me. So simple is a way of teaching and explaining that anybody can fall in love with the subject. Anybody who doesn't know anything about astrology can start to relate with the beings up there, the celestial beings who are having an impact on us on the earth. So Shakuntala ji has a teaching had a teaching career for a very long time, after which she got pulled or sucked into the field of astrology, which she decided to make her life. And here she is to present to us what her life is all about through the gemstones and through the merits of astrology. Welcome, everyone. And thank you, Shakuntala ji. Over to you. Thank you, Nidhi, for this wonderful introduction. And thank you, all of you. आप सभी को भी बहुत बहुत thanks सेशन में आने के लिए. And now let me start with the presentation. Okay. So the topic is astrology and gemstones. This is a picture where all the gemstones are worn almost properly, in which finger it should be worn and like that. Okay. But let us begin it with something else. Okay. So generally I start all my workshop and everything with this Ganesh mantra. So I'll read one letter, one word, and you can repeat it. Vakratund, Vakratund, Mahakay, Suryakoti, Samprabha, Nirvignam, Gurume Deva, Sarvakaryeshu, Sarvada. So this is the Lord Ganesh mantra. And whenever you want to start any of your work, please recite it once, and it has the meaning Nirvignam Kurumete Sarvakareshu Sarvada. So all your work will be accomplished without any obstacle. And I have practiced it and used it. Please. Okay, now I would like you to listen this audio, and I would like you all to guess that which book might be from. Please mute yourself, all of you. So 16वां अध्याय ग्रह शांति। मुकुंद, तुम ज्योतिष संबंधी एक कड़ा क्यों नहीं ले आते? क्या मुझे यह लेना चाहिए गुरुदेव? मैं तो ज्योतिष में विश्वास नहीं करता। यह विश्वास का प्रश्न नहीं है। किसी भी विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि यह सत्य है या नहीं। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से पहले भी उसी तरह कार्य करता था जैसा उसके बाद। I hope you can hear the voice clearly. Yes. Any guesses for the book? I know some of you already know. Swami Shri Yukteswar Giri to his student. Correct. So the book name is this. And I would like, and I think all of you know about this book. And क्योंकि आप सब spiritual इस line में हैं, journey में हैं, तो सभी ने ये book पढ़ी होगी. But I'm starting my presentation with this book only, the chapter 16. Okay. So total 2 audios I would be sharing with you. First is the 3 minutes ka, and then next is 2 minutes audio. Please listen it carefully. The audio is in Hindi and the text is written in English. So you can read it as well, and you can relate, or if you wish, just listen it carefully. So here we go. नहीं करता।
यह विश्वास का प्रश्न नहीं है। किसी भी विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह होना चाहिए, यह सत्य है या नहीं। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से पहले भी उसी तरह कार्य करता था जैसा उसके बाद। ब्रह्मांड में अच्छी खासी अराजकता मच जाती यदि उसके नियम मानवीय विश्वास की मान्यता के बिना कार्य न कर पाते। पाखंडी ज्योतिषियों ने प्राचीन ज्योतिष विज्ञान को उसकी वर्तमान बदनाम अवस्था में लाकर रख दिया है। गणितीय और दार्शनिक दोनों ही दृष्टियों से ज्योतिष शास्त्र इतना विराट है कि गहरी समझ वाले व्यक्ति के अतिरिक्त कोई उसे ठीक से समझ ही नहीं सकता। Wait a minute. Actually, I have to admit so the यदि मूर्ख और अज्ञानी लोग ग्रह तारों के संकेतों को समझ नहीं पाते और अर्थ का अनर्थ करते हैं, तो यह इस अपूर्ण जगत में अपेक्षित ही है। ऐसे ज्ञानियों के साथ ज्ञान को भी मिथ्या नहीं मान लेना चाहिए। सृष्टि के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं। परस्पर आदान प्रदान ही ब्रह्मांड की संतुलित लयबद्ध गति का मूल आधार है। मेरे गुरु कहते गए, मनुष्य को अपने मानवीय स्तर पर दो प्रकार की शक्तियों का सामना करना पड़ता है। प्रथम, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के सम्मिश्रण से उसके भीतर उत्पन्न होने वाली क्षुब्धता। द्वितीय, प्रकृति की बाह्य विघटनकारी शक्तियां। जब तक मनुष्य अपनी मानवीय सीमाबद्धता के साथ संघर्षरत रहता है, तब तक पृथ्वी और अंतरिक्ष के असंख्य परिवर्तनों का प्रभाव उस पर पड़ता रहता है। ज्योतिष विद्या में ग्रहों के प्रभाव के अंतर्गत मनुष्य की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका अध्ययन किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों में कोई दया या कोप का सचेत भाव नहीं होता। वे तो केवल धनात्मक यानी पॉजिटिव एवं ऋणात्मक यानी नेगेटिव किरणें उत्सर्जित करते हैं। अपने आप में ये मानव जाति को कोई लाभ या हानि नहीं पहुंचाते, किंतु मनुष्य द्वारा अतीत में कार्यान्वित किए गए कार्य कारण के संतुलन को स्थापित करने के लिए बाह्य स्तर पर कार्य प्रणाली का एक विधिवत माध्यम प्रस्तुत करते हैं। बच्चा ऐसे दिन और ऐसे क्षण में ही जन्म लेता है जब ग्रह नक्षत्रों की किरणों का उसके व्यक्तिगत कर्मों के साथ संपूर्ण गणितीय तालमेल बैठ जाता है। उसकी जन्म कुंडली उसके अपरिवर्तनीय अतीत और उस अतीत के संभावित भावी परिणामों को दर्शाने वाला एक चुनौतीपूर्ण आलेख होती है। परंतु जन्म कुंडली का सही अर्थ केवल अंतर्ज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही लगा सकते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। So this is one audio and यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी हमारे हॉरोस्कोप है वो यूं ही नहीं मिल गई है। हमारे अपने पास्ट कर्मा के बेस पे प्रॉपर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब आसमान में होती है, एंड दैट इज व्हाई ऑन दैट डे दैट टाइम द पर्सन इज born. So and if it coming directly from autobiography of a yogi and it makes sense. खुद परमहंस योगानंद जी ने ये लिखा है. So another 2 minutes more video that audio that will show you कि क्यों हम जेमस्टोन्स पहने, क्या जरूरी है. So one more audio, just 2 minutes. मनुष्य के सारे दुख कष्ट किसी न किसी प्रकार से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के कारण ही पैदा होते हैं. शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, पर साथ ही ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता में भी उसे अविश्वास या संदेह नहीं होना चाहिए. उसे यह कहना चाहिए, हे प्रभु, आप में मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं जानता हूं कि आप मेरी सहायता करेंगे, परंतु मैं भी अपनी ओर से अपने गत अनुचित कर्मों को नष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा. अनेक उपायों जैसे प्रार्थना, इच्छा शक्ति, योग साधना, संतों के साथ सत्संग, ग्रह शांति करने वाले कड़ों को पहनने के द्वारा गत कर्मों के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है या उन्हें पूरा ही काट भी दिया जा सकता है. जिस प्रकार घर के ऊपर तांबे की छड़ लगाकर घर पर गिरने वाली बिजली से घर को बचाया जा सकता है, उसी प्रकार देह मंदिर को भी कुछ विशिष्ट उपायों से बचाया जा सकता है. विश्व में निरंतर विद्युत और चुंबकीय किरणों का संचार होता रहता है. ये किरणें
मानव शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती हैं। युगों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म वैश्विक किरणों के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने की समस्या पर गहन चिंतन किया। तब उन्हें पता चला कि शुद्ध धातुएं एक ऐसे सूक्ष्म प्रकाश के किरणों का उत्सर्जन करती हैं जो ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को निष्फल करने की प्रचंड शक्ति रखती हैं। जड़ी बूटियों के कई संयोग भी यह काम कर सकते हैं, परंतु इन सब में सबसे अधिक प्रभावशाली हैं 2 रत्ती से अधिक वजन के दोष रहित रत्न। ज्योतिष के व्यावहारिक वृक्षात्मक उपयोगों के विषय में भारत के अलावा कहीं और बहुत ही कम अध्ययन हुआ है। यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि योग्य रत्नों, धातुओं और जड़ी बूटियों के संयोगों से भी कोई लाभ नहीं होता यदि वे आवश्यक वजन के ना हों, और यदि उन्हें इस तरह ना धारण किया जाए कि वे त्वचा का स्पर्श करते रहें। गुरुदेव, मैं अवश्य ही आपका सुझाव मानकर कड़ा ले आऊंगा। किसी ग्रह को मात देने के विचार से ही मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। So this is some audios which I have taken from autobiography of a yogi. So you can understand, पहले खुद परमहंस योगानंद जी अपने गुरु युक्तेश्वर जी को कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा कड़ा पहन के, मुझे ये सब नहीं पहनना है क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देके बोला कि जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये न्यूटन ने जब इसको इन्वेंट किया उससे पहले भी था ना, इट वाज वर्किंग। कुछ भी चीज आप ऊपर से डालोगे नीचे ही गिरेगी। तो जस्ट बिकॉज आपका साइंस इसको नहीं जानता या नहीं मानता या उस तक पहुंचा नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो ट्रुथ नहीं है। सो उनके बहुत अच्छे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से फाइनली इनको समझ में आ गया कि यस, यू शुड wear it. Okay? So I'm just starting my session with that, and now I want you all to know कि कौन कौन से gemstone आप पहन सकते हैं और कौन से नहीं पहन सकते। Many a times I have seen people wearing different gemstones जो बिल्कुल एक दूसरे को काट रहे हैं। That's not good. Okay. Now this picture shows there are total 9 gemstones. That is because there are total 9 planets. उनके लिए ये 9 gemstones होते हैं। Out of these 9 planets, actual planets 7 ही हैं। 2 planets जो कि राहु और केतु हैं, वो full fledged planet नहीं है, कोई physical entity नहीं है। Others are all physical entity, बल्कि राहु और केतु को छाया ग्रह बोलते हैं। तो राहु और केतु बेसिकली एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट है। किसका? सन के ऑर्बिट का और मून के ऑर्बिट का। जो नॉर्थ नोड है, जहां पे ये नॉर्थ क्रॉस सेक्शन पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड राहु, और जो साउथ नोड है दैट इज कॉल्ड केतु। बट दैट डजंट मीन कि उनका वैल्यू नहीं है, उनका बहुत वैल्यू है। बट व्हेन इट कम्स टू, नॉर्मली ये दोनों प्लैनेट शुभ नहीं माने जाते हैं, ये मैलेफिक प्लैनेट्स की उसमें आते हैं। So this is my own practice that I never suggest people wearing Rahu or Ketu के gemstones, जो कि you can see in the middle finger. So that is cat's eye, Lasunia, that is for Ketu, and Hasanet Gomit जो होता है वो राहु का होता है। ये 2 मैं अपनी लाइफ में कभी किसी को सजेस्ट नहीं करती। And see, gemstones are not only the ways, हम मंत्र चैंटिंग करके भी इसको कर सकते हैं। सो इन द एंड आई विल बी डूइंग मंत्र चैंटिंग विद ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द 9 प्लैनेट्स के मंत्रास भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड दिस फुल पीपीटी विल ऑल्सो बी गिवन टू यू इन द PDF फॉर्म। ये भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी पेन एंड पेपर के साथ आप तैयार रहिए क्योंकि कुछ आप नया सीखने वाले हैं आज। ओके, नाउ ये इंडेक्स फिंगर होती है, इसमें येलो सफायर पहनते हैं, इसको हिंदी में पुखराज भी बोलते हैं। देन ये जुपिटर की अंगुली होती है, इंडेक्स फिंगर। गुरु की अंगुली या बृहस्पति की अंगुली होती है, इसीलिए बृहस्पति का जेमस्टोन इसमें पहना जाता है। सिमिलरली मिडिल फिंगर में ये शनि की अंगुली, सैटर्न की अंगुली है मिडिल फिंगर, तो इसमें सैटर्न के जेमस्टोन या सैटर्न के जो फ्रेंड्स हैं उनके जेमस्टोन पहने जा सकते हैं। सो जो नीलम होता है, ब्लू सफायर नीलम,
वो हम इस अंगुली में पहनते हैं। और जैसा कि राहु और केतु के लिए बताया, उनके जनरली आई डोंट सजेस्ट, बट वीनस का क्योंकि ये हाथ में इसका प्लेस होता है थंब में। अब ना थंब में तो वी कांट वेयर एनीथिंग, सो उसको उसका फ्रेंड होता है सैटर्न, उसके में दिया है, तो मिडिल फिंगर में ही डायमंड पहना जाता है। देन दिस इज द थर्ड, ये अपनी अनामिका बोलते हैं इसको, या रिंग फिंगर आप कह सकते हैं। ये सन की फिंगर होती है। सो इसमें आप सन का जेमस्टोन दैट इज रूबी या माणिक वो पहन सकते हैं। और सन और मार्स ये फ्रेंड्स हैं, और दोनों ही बहुत ही हीट वाले हीट वाले या हॉट आप कह सकते हैं प्लैनेट्स हैं। तो ये रेड कोरल जो मूंगा होता है मार्स का, वो भी इस अंगुली में पहना जाता है। देन कम्स द लास्ट फिंगर। मैनी एस्ट्रोलॉजर्स सजेस्ट, ओके, नाउ ये बुध की अंगुली है, मरकरी की अंगुली छोटे वाली, ओके। सो यस, मरकरी का जेमस्टोन दैट इज एमरल्ड, या हम हिंदी में पन्ना बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है, दैट यू कैन वेयर। बट मेनी एस्ट्रोलॉजर विल सजेस्ट दैट पर्ल को भी आप इसमें पहन लो, छोटी अंगुली में मोती को। लेकिन this is my own experience and I never suggest people to wear pearl in this, because क्या होता है कि ओके, पर्ल जो है इसका ये पहना जाता है मून के लिए, बट मून और मरकरी में ऐसी फ्रेंडशिप है नहीं। मून समझता है कि मरकरी मेरा फ्रेंड है, बट मरकरी इसको बिल्कुल अपना फ्रेंड नहीं मानता है। तो इन दैट केस आई सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ दिस लिटिल फिंगर, हमको पर्ल जो है नेक में पहन लेना चाहिए। कि नेक की किसी से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि कुछ जेमस्टोन हम नेक में भी पहन सकते हैं। नाउ लेट अस मूव अहेड। दीज आर द नेम्स, लाइक रूबी हम सन के लिए पहनते हैं, पर्ल हम मून के लिए पहनते हैं। ये पिक्चर काफी क्लियर है, इसमें जेमस्टोन दिखता कैसे है, उसका कलर भी काफी क्लियर है। मार्स के लिए रेड कोरल पहनते हैं, एमरल्ड हम पहनते हैं मरकरी के लिए, और जुपिटर के लिए येलो सफायर पहनते हैं। वीनस के लिए डायमंड है, बट डायमंड बहुत एक्सपेंसिव होता है, और कई बार आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं वो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते डायमंड का, एंड ऑल द टाइम डायमंड पहनना भी ठीक नहीं होता है। देन देयर इज अनदर स्टोन दैट इज ओपल, दैट आल्सो वर्क्स वंडरफुली, वो भी पहना जा सकता है। और कई बार केस में ऐसा भी होता है कि बहुत ही ज्यादा, मतलब थोड़े गरीब लोग भी आते हैं आपके पास पूछने, एंड आपको उनको वीनस के लिए कुछ देना है, तो इवन जिरकन इज दैट इज कॉल्ड अमेरिकन डायमंड, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। बहुत ही सेमी प्रीशियस ऐसा स्टोन है, बट इट वर्क्स, सो दैट कैन ऑल्सो बी वर्न। नाउ सैटर्न के लिए ब्लू सफायर होता है, और कभी कभी इसका एक सब्स्टिट्यूट होता है एमेथिस्ट, वो भी पहना जा सकता है, क्योंकि ब्लू सफायर थोड़ा रिस्की होता है। रिस्की क्यों होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ओके, राहु के लिए हजनेट जैसे गोमेद होता है, और केतु के लिए कैटसाई लहसुनिया होता है, बट आई डोंट सजेस्ट पीपल टू वियर राहु या केतु के स्टोन्स। ओके, इनके मंत्र जपा करना चाहिए। ओके, देन दिस इज द लिस्ट, दीज आर द प्लैनेट्स हमने डिस्कस कर लिया है, और ये जेमस्टोन है इनके रिलेटिवली। कौन से दिन में, डे, हर प्लैनेट का एक डे होता है। आप आजकल व्हाट्सएप पे भी बहुत जगह आप देख रहे हैं, बहुत क्लियरली आता है कि होरा वर्ड कहाँ से लिया, एक्चुअली ये सब एस्ट्रोलॉजी से लिया गया है। तो डेज, क्योंकि फर्स्ट डे जैसे ही सनराइज होता है, फर्स्ट होरा इज 1 आवर, दैट होरा इज संस्कृत वर्ड, तो फर्स्ट होरा उसी दिन की रहती है। तो संडे को जैसे ही सनराइज होगा, फर्स्ट 1 आवर में हम जनरली जेमस्टोन पहनते हैं, क्योंकि ये सन की होरा होती है। मंडे को मून का दिन है, मार्स का मंगलवार होता है, इसीलिए हमारे यहाँ हिंदी में एकदम करेक्ट होता है, मार्स इज मंगल, तो मंगलवार दैट इज ट्यूसडे। मरकरी बुध, तो बुधवार वेडनेसडे, उस दिन एमरल्ड पहन सकते हैं। जुपिटर गुरुवार, जुपिटर को गुरु और बृहस्पति दोनों कहा जाता है, तो येलो सफायर थर्सडे दैट इज, जो कि आज का दिन है, गुरुवार और बृहस्पतिवार। वीनस को शुक्र बोलते हैं,
So Friday या शुक्रवार, it is like that. Okay. Then we have Saturn, शनि, तो शनिवार, Saturday. तो इस तरीके से ये है। राहु केतु के दिन भी हैं सैटरडे के, क्योंकि इनकी अंगुलियां पे हमने आपने देखा मिडिल फिंगर में पहना है, तो ये इनकी फिंगर्स है, सन की रिंग फिंगर होती है। मून के लिए आई प्रेफर नेक, मार्स के लिए रिंग फिंगर है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जुपिटर के लिए इंडेक्स फिंगर है अकेली, और वीनस के लिए और सैटर्न के लिए मिडिल फिंगर है। सिमिलरली मेटल्स अभी आपने सुना होगा, अदरवाइज नहीं भी सुना है तो आई विल शेयर दिस चैप्टर 16 का ऑडियो, नहीं तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की जो 16th चैप्टर है आप रीड करिए, उसमें दे से खाली मेटल्स भी वर्क करती हैं। सो ईच प्लैनेट इज हैविंग देयर ओन प्रेफरेबल मेटल। तो सन का हम, क्योंकि ये हॉट है तो गोल्ड थोड़ा हॉट मेटल में आता है, तो सन का हम गोल्ड में पहनते हैं, मून का सिल्वर में पहनते हैं, इवन वीनस के लिए भी सिल्वर में पहनते हैं, बिकॉज मून एंड वीनस कंपैरेटिवली कोल्ड है, और ये इनका जो एलिमेंट होता है पंचभूत वो जल तत्व होता है, वाटर होता है, इसलिए ये इसमें पहने जाते हैं। मार्स अगेन काफी हॉट है तो गोल्ड में पहना है। मरकरी का भी मेनली गोल्ड में पहनना चाहिए। रेयर केसेस में यू कैन अलाउ पीपल, जब उनके पास कई बार आपके पास ऐसे भी क्लाइंट आएंगे दे कांट अफोर्ड, उस केस में उनको सिल्वर में भी दिया जा सकता है। जुपिटर का गोल्ड में ही पहनना होता है, सैटर्न का ही गोल्ड में पहनना है, दैट्स इट। ओके, नाउ दिस इज द जनरल प्रोसीजर। कैसे पहनना होता है, तरीका क्या है। एक दिन पहले, वन डे प्रायर इन द इवनिंग, डिप द जैमस्टोन इन द रॉ मिल्क अनबॉइल्ड, जो फ्रेश मिल्क होता है कच्चे दूध में आप रात को भिगो दीजिए। कई बार लोग पंचामृत भी कह सकते हैं, तो आपको अगर आता है तो आप उसमें भिगो दीजिए। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉश इट विद द क्लीन वाटर, और अगर आपके पास गंगा जल होता है तो गंगा जल से और धो लीजिए उसको। अर्ली मॉर्निंग विद इन 1 hour ऑफ सनराइज। नाउ जो हम जेमस्टोन पहनेंगे उसी डे को पहनेंगे, एंड वाई विद इन 1 hour ऑफ सनराइज, बिकॉज उस समय उसी प्लैनेट की होरा होगी, तो कोई भी प्लैनेट से रिलेटेड काम भी जो शुभ मुहूर्त होते हैं उसकी होरा में करे जाए तो अच्छा रहता है। तो दैट इज बाय, और ये बहुत आसान होता है। सनराइज यू कैन फाइंड आउट इजीली, आजकल गूगल और इस पे हर जगह मिल जाएगा आपको। सो यू कैन take bath and do some dhoop agarbatti to the gemstone in the place of worship. Chant the planet related mantra for 108 times. If you can't do it for 108 times, at least do it for 11 times. All the mantras I'll be sharing with you. In the end, we will be chanting it also. And then with full faith, you have to wear it. Okay? आप बहुत जगह जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स खुद बेचने लग जाएंगे दिल से कि ये हमारा बेस्ट है, ये है, एंड दे आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स, दे आर बिजनेसमैन। किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी बदनाम हुई है वो स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने अभी बहुत क्लियरली बता दिया, हम सब ने सुना है ऑडियो में। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट द कॉस्ट ऑफ जेमस्टोन, बल्कि आपकी फेथ कितनी है, दैट इट इज योर फेथ दैट वर्क्स मोर। तो जो कुछ भी काम करिए पूरी फेथ के साथ करिए, देन इट वर्क्स। In my life, I have just worn one gemstone, and that is pearl, because that is a gemstone which is lucky for me. Okay, मैंने इसको फर्स्ट टाइम पहना जब मुझे बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी, बिल्कुल विदाउट फेथ पहना। लिटरली 1 या 2 months में मैंने रिमूव भी कर दिया क्योंकि किसी के कहने से पहना था। बट विद इन 6 months और समथिंग, जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया एंड आई रियलाइज्ड ओके दिस प्लैनेट इज माय लकी स्टोन, ओके दिस इज द लकी, देन आई वोर, मैंने इसको पहन लिया और आज तक मैंने इसको नहीं उतारा है। बिकॉज आफ्टर दैट वियरिंग दैट लकी स्टोन आई रियलाइज दैट मेरा जो काम मैं करती थी उसका अप्रिशिएशन पहले नहीं मिलता था। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गेटिंग दैट। सो दैट विच इज योर लकी स्टोन, विच इज योर लकी कलर, which is your lucky direction, ये सब बहुत इजीली आप खुद आज के क्लास के बाद में जान सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट डूइंग समथिंग। ये सेम पिक्चर है। ओके, नाउ
थोड़ा हम पेपर पेन पे भी काम करेंगे, दो आई विल बी गिविंग यू दिस, बट दिस थिंग वी शुड नो, बाद में यू कैन लर्न इट, दैट हर कोई जब होरोस्कोप बनती है उसमें एक हर कॉलम में नंबर लिखा होता है. देयर आर 12 साइंस, 12 जॉडियक साइंस वी ऑल नो, या 12 राशि होती है. तो हमेशा चार्ट में, नॉर्थ इंडियन चार्ट में राशि का नंबर नोटेड रहता है. नाउ दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज के हमारे क्लास में ये नंबर ही बिग रोल प्ले करने वाला. नाउ नंबर 1 जो साइन होता है उसका नेम होता है एरीज, या हिंदी में हम मेष कहते हैं. ये उसका सिंबल है. अभी एक क्लास में, इट इज वेरी बिगिनर्स क्लास कुछ लोगों के लिए, मैं नहीं उम्मीद करती हूँ कि आप ये नंबर्स के साथ इन राशि का नाम भी नोट कर, याद करो, ये सब करो. नॉट नीडेड. दिस स्लाइड विल बी विद यू लेटर, आप कर लीजिएगा. राइट नाउ आई वांट दैट यू शुड नो दीज राशिस का नंबर एंड who is the owner of these planet, these राशि. ओके, सो नंबर 1 जो राशि है इसका रूलर होता है मार्स. 2 नंबर जो राशि है, जो हम बोलते नहीं, हम टॉरस ही बोलते हैं, लेकिन 2 जो है इसका ऑनर होता है, रूलर होता है वीनस. तो हम जब हमारा लकी नंबर ये आएगा तो हम वीनस का जेमस्टोन पहनेंगे. एज सिंपल एज दैट. ओके, स्टिल इसमें कुछ नोट करने जैसा नहीं है. आपको नेक्स्ट स्लाइड में और इजी मैं करके दे रही हूँ, उसका आप फोटो खींच सकते हैं. 3rd जो है जेमिनी, इसका होता है मरकरी. 4 नंबर जहां मिलेगा जो कैंसर है, इसका होता है मून. एंड देन 5 नंबर का सन. सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम. आप जो ये नंबर्स और ये चीज बता रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू नेम है या डेट ऑफ बर्थ है? नो, ये अकॉर्डिंग टू होरोस्कोप. ओके, तो अच्छा, वो आप बताएंगे कैसे? वो अभी आगे बताएंगे. आप थैंक यू. बिकॉज टोटल देयर कैन बी ओनली 12 टाइप ऑफ होरोस्कोप, सिर्फ 12 टाइप. वो सारी 12 टाइप्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. ये हर एक जॉडियक साइन को नेम के साथ एक नंबर दिया हुआ है, वो नंबर हम बात कर रहे हैं. सो दिस गोज ऑन लाइक दैट. ओके, ये आगे चलता रहेगा. लाइक 6 का मरकरी, 7 का वीनस, 8 का मार्स, 9 का जुपिटर, 10 का सैटर्न, 11 का सैटर्न एंड 12 का जुपिटर. सी वैसे हम इनको कभी भी राशि का नंबर नहीं बोलते हैं, बट सिंस इट इज द फर्स्ट एंड द ओनली क्लास, सो लेट अस गो बाय द सिंपल वे. नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू लर्न इट. अदरवाइज दिक्कत होती है. इस तरीके से सीखेंगे तो दिक्कत होगी. जैसे 1 and 8, these both the signs are ruled by Mars. ओके, तो हम इसको लर्न कैसे करें, इसका बहुत इजी तरीका बताया हुआ है. आप साइंस को यूं रखिए, 1 2 3 4 एंड देन वापस से 5 6 7 8. नाउ you'll find 1 and 8 are ruled by Mars, 2 and 7 are ruled by Venus, 3 and 6 are ruled by Mercury, 4 is ruled by Moon and 5 is ruled by Sun. Then एक नया बनाना पड़ेगा, 9 10. 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया. 9 10 11 12. Okay, now 9 and 12, these rashis are ruled by Jupiter. 10 and 11 are Saturn's own sign. इस तरीके से ये है. इसका आप चाहें तो पिक्चर क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा इजी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए किया है. वहां पे मैंने जेमस्टोन्स का भी नाम लिख दिया है. नाउ दिस पर्टिकुलर पिक्चर विल बी यूजिंग टुडे. ओके, सो प्लैनेट इज मार्स. इसकी जो ओन साइंस है, इट ओन्स 2 साइंस, दैट इज साइन नंबर 1 and 8. ओके, नॉर्मली वी कॉल इट एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष एंड वृश्चिक. ओके, जेमस्टोन इनका होता है रेड कोरल, मूंगा, लाल रंग का मूंगा. इसे next is Venus. It owns number 2 and 7 sign, and that is Taurus and Libra. हम कह सकते हैं वृषभ या तुला राशि. और इसके लिए जेमस्टोन होगा डायमंड, ओपल, जिरकन. इस पिक्चर को आप क्लिक कर लीजिए. मरकरी के लिए जहां पे नंबर 3 और 6 लिखा होगा, that is Gemini and Virgo. मिथुन और कन्या राशि है.
यहाँ पे एमरल्ड जो पन्ना होता है ग्रीन कलर का। मून के पास एक ही राशि है एंड दैट इज कैंसर, कर्क नंबर 4 होती है, और पर्ल इसका जेमस्टोन होता है। सन के पास एक ही राशि है, लियो है, सिंह राशि है, और रूबी या माणिक इसका जेमस्टोन होता है। जुपिटर के पास 2 साइन है फिर से, 9 and 12 दैट इज सैजिटेरियस एंड पाइसेस, धनु राशि है और मीन राशि है। Just a second. What is Yes. Manikya? माणिक्य, Manikya stone. I don't know. माणिक्य, रूबी, रूबी। Only Ruby is my. I am Sun, so I am Leo. So I am asking. I am Leo. You are not sun right now. अभी हम अभी काम करेंगे, then only you will know who you are. Okay. Yeah. Forget these all this we are discussing is Vedic astrology. True Indian Vedic astrology I'm discussing. I'm not discussing Western astrology. Western astrology में जो आप देखते हैं sign, that is sun sign. जहां पे सन बैठा होता है वो साइन है। नो 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 नो, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पहले तो वो साइन ही नहीं देखते, हम मून साइन देखते हैं। ओके, बट यहाँ पे जब हम जेमस्टोन की बात करें, वी विल नॉट इवन बी डिस्कसिंग द मून साइन ऑल्सो, वी विल बी डिस्कसिंग लग्ना असेंडेंट। वो अभी मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ, बट उससे पहले, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर में अभी खुद ही बताने लग जाएंगे मुझे जेमस्टोन। अगर आपको ये पिक्चर क्लियर है, प्लीज इधर यू नोट इट डाउन और यू क्लिक इट, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, हम इसको प्रैक्टिकली व्हाइट बोर्ड पे करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बी अटेंटिव एंड you'll enjoy the class. Okay, now जुपिटर के पास 9 and 12 that is धनु और मीन राशि, सेजिटेरियस और पाइसेस राशि है, और इसका होता है येलो सफायर, या हिंदी में हम पोखराज भी कहते हैं। कुछ लोग टोपाज शायद इसका थोड़ा हल्का वर्जन सब्स्टिट्यूट होता है। ओके, नाउ सैटर्न के पास 2 साइन है, एक है दिस इज कैप्रिकॉर्न एंड देन एक्वेरियस। राइट नाउ सैटर्न इज इन कैप्रिकॉर्न साइन ओनली, एंड वेरी सून 17 जनवरी की इवनिंग में 18 जनवरी को इट विल बी ट्रांजिटिंग टू द एक्वेरियस। ओके, सो अभी सैटर्न अपने ही साइन में रहेगा आगे भी। ओके, ना इसका ब्लू सफायर होता है समटाइम्स, बिकॉज ये बहुत रिस्की होता है। क्यों रिस्की होता है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। दिस पिक्चर शुड बी क्लियर। कौन सा साइन पड़ रहा है और कौन सा उसका रेलिवेंट जेमस्टोन होगा, वो पिक्चर आपके पास सामने है, यू कैन क्लिक इट ऑल्सो। नाउ आई एम मूविंग अहेड। अनदर थिंग इज, कई बार आपके पास जेमस्टोन नहीं है, ठीक है, तो आप उस राशि का, उस साइन का कलर भी पहन सकते, वो कलर का कपड़ा भी, द क्लॉथ दैट इज ऑल्सो लकी। सो ये एक पिक्चर मैंने आपको दी है जिसमें जो भी राशि नंबर है उनका रेलिवेंट कलर है, दैट यू कैन ऑल्सो वियर। कभी कभी ये भी वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज व्हाट अ नॉर्थ इंडियन चार्ट लुक्स लाइक। ओके, नाउ इसमें कोई भी प्लैनेट नहीं बैठाया है। दिस इज जहां पे नंबर 1 लिखा है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट है। इफ यू सी देयर आर जस्ट 4 बॉक्सेस व्हिच आर कंपैरेटिवली बिगर इन साइज, और ये फर्स्ट वाला, दीज आर वेरी प्रोमिनेंट, इसलिए इनको सेंटर बोलते हैं। बट इसमें जो टॉप मोस्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट भावा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट भावा, फर्स्ट हाउस, और लग्न और असेंडेंट, and this is the sign which is rising at the time of the birth of a child. या अभी भी जिस समय भी हम बात करते हैं तो इस समय कौन सी राशि ईस्ट हॉरिजन में राइज हो रही है, वो राशि का नंबर यहाँ पे आपको दिखता है। एंड देन वी मूव एंटी क्लॉकवाइज, फिर हम नेक्स्ट राशि लिखते हैं, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से हम राशियों को लिखते हैं। अभी मैंने कोई प्लैनेट नहीं बैठाया है, बट नाउ इफ यू नो दिस थिंग, इफ यू गो जस्ट बैक, ओके, 1 means Aries, okay, और the planet is Mars, okay. So अगर सपोज हम ये फर्स्ट का ही बात करें तो इसका लगना होएगा
Aries, or Lagna Lord, that will be Mars. So the gemstone will be Mars ka jo gemstone hai, that is red coral, like that. Okay, now you will come to know that what are the gemstones you can wear. It's very simple thing. Okay, so let us see. This is called Trikona or trine. That is called 159. Why I say 159? Just go back. You'll know. This, the first house is known as Lagna ascendant or the first. Okay. And when you move like this Kona, this is called trine. Okay. The fifth one, it is here. This is called first trine and this is another trine 9. Okay. These three, this is the ascendant. Now this is fifth. You can count it also anti-clockwise. 2, 3, 4, 5. Okay. 6, 7, 8, 9. अब ये जो तीन आपको दिख रहे हैं रेड में, these are the most auspicious houses, most auspicious राशि, और इनका जो लॉर्ड होते हैं वो. So these planets के gemstones one can wear. So at the most maximum आप कितने gemstone पहन सकते हो? Only 3, not more than 3. और वो जो इनके लॉर्ड होंगे. Understand, I'm saying इनके लॉर्डशिप, जो फर्स्ट में जो भी नंबर पड़ रहा है उसका, फिफ्थ में जो नंबर पड़ रहा है, 9th में जो नंबर पड़ रहा है, उस राशि का जो लॉर्ड है उसका जेमस्टोन आप पहन सकते हो. फर्स्ट हाउस को लाइफ स्टोन भी बोलते हैं, जेमस्टोन. और ये आप खुद हो, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी ओवरऑल वेलबींग है, आपकी हेल्थ है, आपकी वेल्थ है, एवरीथिंग अबाउट यू. अगर आप मजबूत होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ आसान हो जाएगी. Then fifth house is also again a good house, and ये आपकी पद प्रतिष्ठा, वैसे चाइल्ड का, बुद्धि का और बहुत सारी चीजों का होता है, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी लकीएस्ट थिंग. पुण्य कर्म, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म, लाइक दैट. So this can be worn. And 9th, that is your luck house. This is your lucky number. This is your lucky stone. अगर मुझे किसी को एक स्टोन सजेस्ट करना है, I mainly suggest this 9th house का. ये लक हाउस है, ये लकी स्टोन. यही आपकी लकी डायरेक्शन भी होती है और यही आपका लकी कलर भी होगा. So I normally suggest this one. This is the first gemstone. If needed, then only you should wear. हर कोई gemstone जरूरत भी नहीं होता, पहनना भी नहीं होता. So हमारी जो horoscope होती है उसमें 12 houses होते हैं, उसमें से 1, 5, 9. These are the most auspicious houses. अब देखते हैं कैसे. Now these two things I want you all to know. What is जन्म लग्न? ये जो first हमको दिख रहा था. So this is the rising sign in the east, right? And this is shown here. यहाँ पे जो भी नंबर आता है, जो भी साइन का नंबर आता है, that is your lagna. So this janam lagna is highly important, and for that you need to have your time of birth absolutely correct. Time of birth and place of birth along with date of birth, वो जरूरी. कई बार टाइम तो ठीक है, लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ के भी चेंज होने से वो जन्म लग्न चेंज हो सकता है, क्योंकि जन्म लग्न में 30 डिग्री का टोटल रहता है एंड 1 डिग्री चेंजेस विद इन 4 मिनट्स. एंड एट द सेम टाइम अगर मैं इसी समय कैलकाटा की बनाऊं और वेस्ट में जयपुर की बनाऊं तो चेंज हो सकता है लग्न, अगर वो बॉर्डर पे है. सो लाइक दैट. तो वो प्लेस ऑफ बर्थ भी इसलिए जरूरी है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज जन्म राशि. दिस इज एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, द साइन वेयर मून इज पॉजिटिव. हम लोग जो राशि या जानते हैं वो क्या होती है, मून साइन. नाउ दिस इज वी आर स्टार्टिंग. नाउ दिस इज द फर्स्ट चार्ट आई हैव टेकन, दैट इज ऑफ एरीज लग्न. जब आपके एक दिन में टोटल हर लगन को आने का चांस मिलता है, एवरी डे 2 hours ईच लग्न विल बी देयर.
than 2 hours, not exactly 2 hours. It varies. Okay. Minimum 90 minutes से maximum 2 hour 30 minutes का भी हो सकता है. आजकल रात को आप देखेंगे तो रातें क्योंकि बड़ी होती हैं, तो रात में जो ascendant आ रहे हैं वो 2 hours 30 minutes तक रह रहे हैं. Okay. Anyways, so जब भी हमारा जन्म होता है उसका जो टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, वो हम एंटर करेंगे सॉफ्टवेयर में. कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर है, कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल होते हैं, लाइक एस्ट्रोसेज है या हिंदू कैलेंडर है, या मोबाइल ऐप के थ्रू मिल जाते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर हैं. उनमें भी आप डेटा डालेंगे तो एक्यूरेट आपका होरोस्कोप बन जाएगा, या किसी भी नोन जिसने थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है उससे आप बनवा सकते हैं. सो आफ्टर फिलिंग अप, ये बहुत सिंपल डिटेल्स हैं, ये डालते ही आपका चार्ट तैयार हो जाएगा. तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट नंबर होगा उसके हिसाब से यू कैन वेयर द जेमस्टोन. नाउ इफ सपोज द नंबर 1 इज देयर, तो दैट इज एरीज असेंडेंट का चार्ट है. नाउ एरीज असेंडेंट का चार्ट है तो इसका जेमस्टोन क्या हुआ? एनीवन फ्रॉम यू? इसका मार्स. यस, इसका असेंडेंट लॉर्ड हो गया मार्स, और मार्स का जेमस्टोन क्या होगा? रेड कोरल, राइट? सो दिस पर्सन कैन वेयर रेड कोरल, दैट इज द वन. इज दिस इज द ट्राइन. यहाँ पे लिखा है 5 जो है, इट इज ओन्ड बाय whom? It is a Leo sign. It is owned by whom? सन. और सन का जेमस्टोन क्या है? रूबी माणिक. करेक्ट, माणिक. ओके. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज दिस इज 9 नंबर इज साजिटेरियस या धनु राशि, इज ओन्ड बाय जुपिटर. करेक्ट. और जुपिटर का जेमस्टोन क्या है? येलो सफायर. तो अगर कोई बंदा एरीज असेंडेंट का है तो वो ये 3 जेमस्टोन पहन सकता है, एंड दे आर हियर. रूबी. why I have written red coral in the end? इसका रीजन है क्योंकि ये लग्न लॉर्ड होके 8th लॉर्ड भी हो रहा है. कभी न कभी ये इसके भी रिजल्ट देता है, बट आई हैव सीन पीपल, इस केस में भी आपने रेड कोरल पहना है तो उनकी हेल्थ वगैरह अच्छी करनी है तो होती. एंड दिस विल बी फॉर द लक, एंड दिस विल बी अगर अदरवाइज 5th हाउस से रिलेटेड या लक से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो रूबी भी पहन सकते हैं. इन 3 के अलावा और कुछ नहीं पहनना है उसको. एंड दिस इज फॉर फिक्स्ड. अब आप जब भी कोई किसी का चार्ट देखेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि आपको उसमें प्लैनेट कौन सा बैठा है. नो, वी आर नॉट चेकिंग which planet is sitting. That's not needed. Which number is that? आपको मैं एक एग्जाम्पल भी बना के दिखा देती हूँ, then we will discuss. But let us go for the second one. उसके बाद शकुंतला जी, हाँ जी. one quick question. Yes. So these 3 stones, are they compatible with each other, or in general Definitely. No, they are always compatible. 1 5 हमेशा होगा, then 2 6 10 होगा, देन 3 7 11 होगा. बहुत खूबसूरती से ये डिजाइन किया हुआ है ऋषियों ने. 4 8 2 ये कंपेटेबल. Okay, thank you. कंपेटेबल. ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड. एक 2 चार्ट और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट तो अभी आप ही करेंगे. टोटल 12 ही चार्ट्स हो सकते हैं. नाउ लेट अस से द सेकंड वन, दैट इज द टॉरस असेंडेंट, या वृष लगन की कुंडली होती है किसी की. ये लॉर्ड कृष्ण की थी, वृष लगन की कुंडली लॉर्ड कृष्ण की. ये 2 नंबर यहाँ पे. ओके, तो फिर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे. सो 3 4 5 6 7 8. ओके, तो इसमें फाइनली 12th हाउस में तो ये 1 हो जाएगा ऐसे. तो एनीवन कैन गेस दिस इज द 2 नंबर टॉरस. इसका लॉर्ड कौन हुआ? असेंडेंट लॉर्ड कौन हुआ? वीनस. करेक्ट, वीनस. और वीनस के लिए क्या पहन सकते हैं आप? डायमंड पहन सकते हैं. मेरे एस्ट्रोलॉजी के सर ने मुझे बताया था कि डायमंड पहनते समय थोड़ा सा केयरफुल हमको होना चाहिए. कि अगर आपके मेल चाइल्ड है तो अवॉइड करना चाहिए डायमंड पहनना. देन व्हाट नेक्स्ट? तो ओपन.
ओपल इज अ वंडरफुल स्टोन, इट वर्क्स इक्वली वेल, तो ओपल पहन सकते हैं। एंड देन जिनके सिर्फ गर्ल चाइल्ड्स हैं उनके लिए वो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मेल चाइल्ड के लिए दे से कि थोड़ा सा रिस्की हो जाए। ओके, अदरवाइज क्या मतलब रिस्की क्या हो सकता है, कंट्राडिक्टरी रहता है क्या? नहीं नहीं पहनना चाहिए। मीनिंग में कोई डिफरेंस रहता है? आपको थोड़ा सा उनके लिए नुकसान कर सकते, इसलिए नहीं पहनना चाहिए। सो दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज फिफ्थ, ये कोना है फिफ्थ, फिफ्थ लॉर्ड का पहन सकते हैं। नाउ हु इज फिफ्थ लॉर्ड इन दिस, विच साइन इज दैट? Six is Virgo. Virgo is owned by Mercury. Mercury. And Mercury का planet कौन सा Emerald. 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 अगर आपने देखा होगा, एमरल्ड को हम पन्ना भी बोलते हैं, तो अगर आपने पुराने पिक्चरों के गाने वाने भी सुने हैं तो बहुत क्लियर थे कि वहां की रानी महारानी के हीरो पन्ने का हार पहना है। Okay, so this was a combination. It used to be a combination like emerald and diamond. इन दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। सो डायमंड के साथ एमरल्ड पहन सकते हैं। एंड व्हाट नेक्स्ट? 10 नंबर रूल्ड बाय Saturn. And what is the gemstone? Blue sapphire. Blue sapphire. In this case, though generally gemstone ये जो है blue sapphire is risky, but जो Taurus ascendant के लोग हैं, इनके being 10th lord, 9th lord and 10th lord, ये बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनता है और ये लोग आराम से ब्लू सफायर पहन सकते हैं। नीलम ये लोग पहन सकते हैं, बहुत अच्छा इनके लिए, ये कहते हैं राजयोग कारक प्लैनेट। So for this ascendant, we have these three: blue sapphire, they can wear, emerald, diamond. But I would say blue sapphire पहनने से पहले एक अच्छे प्रैक्टिशनर एस्ट्रोलॉजर को डिस्कस कर लेना चाहिए। Let me tell you, for the same type of horoscope, एक बार एक मेरी फ्रेंड के किसी के, उसका सैटर्न यहाँ पॉजिटिव था। ओके, पोजीशन भी देख लेनी चाहिए कई बार। तो सैटर्न, दो इस चार्ट के लिए ब्लू सफायर सैटर्न इज द बेस्ट प्लैनेट, बट इट वाज पॉजिटिव हियर। अब क्या है, उसकी पोजीशनिंग थोड़ी ज्यादा ही खराब हो गई। जहां पे भी कोई प्लैनेट बैठा है वो वहां की चीजों को बढ़ा सकता है। यहाँ पे सैटर्न क्योंकि नीच का हो जाता है, राशि वाइज भी खराब होगी, प्लेस भी 12th हाउस वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसेस में होता है। जैसे 159 गुड प्लेसेस होते हैं, ऐसे 6 से 12 बैड प्लेसेस होते हैं, दुस्थान होते हैं, त्रिक स्थान होते हैं। तो ये दोनों स्थिति खराब थी और उनकी हेल्थ डाउन होती जा रही थी। आई आस्क हर, प्लीज रिमूव दिस नीलम जेमस्टोन। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया आप हटा दो, उनको मेरे में फेथ थी। शी रिमूव्ड एंड हर हेल्थ इंप्रूव्ड, राइट। सो एक ब्लू सफायर एक ऐसा स्टोन है वेयर आई फील इट इज वेरी रिस्की। और आपने बचपन में भी कहानियां सुनी भी होगी कि उसने नीलम पहना, ये हो गया वो। दो फॉर दिस लग्न इट इज वंडरफुल, बट only in case if Saturn is posited here. These are the people who born in 1968 to 1971 या फिर इसके 30 years बाद, उनको नहीं पहनना चाहिए। All right, let us move ahead. एक और चार्ट कर लेते हैं। नंबर 3 जैमिनी असेंडेंट है, लग्न है ना, इसका पहना जा सकता है। जैमिनी असेंडेंट का लॉर्ड कौन है? जैमिनी का मरकरी। और मरकरी का जेमस्टोन ग्रीन, यस ग्रीन, दैट इज पन और एमरल्ड हम कह सकते हैं। नाउ अगेन द ट्राइन लॉर्ड इज हियर, इट इज वीनस, तो वीनस का डायमंड पहन सकते हैं। और इधर आता है नीलम। नाउ इट इज अ रिस्क बिकॉज द अदर साइन फॉल्स Saturn की in the 8th house. 8th house, one of the really difficult house.
मृत्यु तुल्य कष्ट वाला हाउस. So for Gemini ascendant horoscope, generally I say avoid. I never suggest कि वो, हालांकि उनका लकी स्टोन है, बट आई विल नॉट से कि वो ये पहने, बल्कि आई विल सजेस्ट देम कि आप ब्लू कलर के कपड़े पहनो. गाड़ी लेनी है ब्लू कलर की लो. Do that. Okay. So here I can say that emerald and diamond are good, but blue sapphire, that neelam is little risky because 8th lord है तो 8 के रिजल्ट दे सकता है. ये थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना चाहिए. Now, would you like to continue like this or getting bored, or should I show you a chart, or shall we go for the practical? आप लोगों का practical exam लिया जाए. And we can continue with this. Okay, fine. Okay. Then we have one more. कि half हम राशिस का कर लेंगे, then there will be a test for you. Now next is Cancer. कैंसर असेंडेंट कर्क लगन की जो चार्ट है, ये भगवान राम की थी. सी इट वाज गिवन, आप रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, इट इज गिवन कि भगवान राम किस राशि में, किस नक्षत्र में और किस लग्न में पैदा हुए. टू दैट एक्यूरेसी इट इज गिवन. ओके, सो कर्क लगन की कुंडली, ये बहुत ही सेंसिटिव सोबर पीपल होते हैं. ओके, नाउ कर्क लगन में ये जो कैंसर असेंडेंट है, इसका ऑनर कौन है? इट इज ओन बाय Moon. मून. और मून का जेमस्टोन Moti. पर्ल, मोती. करेक्ट. तो इस केस में आप वो पहन सकते हैं. देन नेक्स्ट इज दिस नंबर 8 रूल्ड बाय Mangal. यस मार्स, तो उसका होता है रेड कोरल. Then last is this number 12, Pisces, Jupiter. by Jupiter. So yellow sapphire और पुखराज. अब at the same time ये 6th lord भी. तो कई बार हम कह सकते हैं, वैसे तो ये फायदा देगा, लेकिन आप कह सकते हो कि आप ये स्टोन को लाके घर में चेक करके देख लो. दे अलाउ, ज्वेलर्स जो हैं आपको 7 दिन घर में रख के फिर आप उनको रिटर्न कर सकते हो. तो बिना उसका एक बार रिंग वगैरह बनाए बिना ही आप लाके तकिए के नीचे रख के 1 वीक देख लो हाउ यू फील. ओके, बिकॉज ये थोड़ा 6th लॉर्ड है, थोड़ा बीमारी अगर आती है, आनी नहीं चाहिए. इट वर्क्स, ये इसी के रिजल्ट देगा. बट यू शुड टेस्ट इट. समटाइम्स यू शुड टेस्ट द जेमस्टोन एंड देन वेयर. ओके, अगर नहीं सूट करता है, जैसे कई बार हम नया शू लाते हैं, वो भी नहीं सूट करता, 1 वीक तक चेक करो, नहीं सूट करता है तो बेस्ट है उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. सो फॉर कर्क असेंडेंट, दिस कैंसर असेंडेंट, रेड कोरल, दैट इज द योग कारक प्लैनेट, द बेस्ट प्लैनेट फॉर दिस, दैट इज मार्स बीइंग द कोना लॉर्ड एंड द सेंटर लॉर्ड. ये इसका है रेड कोरल. देन पर्ल पहन सकते हैं एंड येलो सफायर भी वी कैन वेयर. उतना रिस्की नहीं है जितना सैटर्न का केस में था. दिस इज फाइन. हियर यू नो दैट ये 2 ग्रुप्स बन जाते हैं और वो हैं. अभी एक आध चार्ट और कर लेते हैं, क्विकली कर देते हैं, देन आई विल शो यू दोस ग्रुप्स. और आपसे एक चार्ट बनवाएंगे भी, ना सामने देखने से नहीं है. लियो असेंडेंट का चार्ट है, फटाफट बता दीजिए कौन कौन से जेमस्टोन्स होंगे क्विकली. सन. ये एमरल्ड क्यों बोला भाई? ये सन है, सन का रूबी होता है श्री लक्ष्मी. हाँ ठीक है. ठीक है, इसका रूबी हुआ. एंड देन याचना जी इसका बताओ 9 का. जुपिटर. Yellow sapphire. Yellow sapphire, good. And then this is Coral. Aries. coral. Yeah, Aries, owned by Mars, so red coral. Fantastic. और again इसके लिए भी ये Mars is राजयोग कारक planet, being a central lord and 9th lord. So ये लोग ये सब पहन सकते. Good. We have done many. Now let us stop share and let me show you those combination जो पहन सकते हैं वो. और फिर एक चार्ट नंबर 6 का हम चार्ट खुद बना के आपको बताते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा चार्ट बनाना भी आना चाहिए फिर. और ये फिक्स्ड है, ये साइन फिक्स्ड है, ऐसे टोटल बस 12 तक ही आएंगे.
those also I'll show you, and then we'll do the mantra, and then come 9:30 tak we'll wind up. Okay, so let us do the whiteboard use. जैसा कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा कि ये क्लैश करते हैं या नहीं करते. Let me show you, there are just two groups. Okay, two groups. Okay, one side group is ये यहाँ पे सन, या तो आप सन का पहनोगे या फिर आप मून का पहनोगे, दोनों नहीं पहन, तो एनी वन ऑफ देम. ओके, देन इनके साथ मार्स इनका फ्रेंड है और ये इनकी फ्रेंडशिप्स भी होती है. और एक होता है अपना जुपिटर. ओके, तो व्हाट विल बी द जेमस्टोन्स, वो उसके सामने लिखने चाहिए थे, बट आई एम राइटिंग हियर. ओके, तो ईदर यू कैन वेयर रूबी और यू कैन वेयर पर्ल. ये तो फर्स्ट चॉइस होगी, और ये सब फ्रेंड्स. ओके, मार्स का हो गया रेड कोरल, आई एम जस्ट राइटिंग कोरल. ओके, एंड देन जुपिटर का हो गया आपका येलो सफायर. Now, with the party, that is Sun and Moon, then we have Mercury and Venus, other party. और यही आती है, ऐसे ऐसे नहीं कि कुछ और आएगा. तो मरकरी का हो गया एमरल्ड, इसका हो गया, अभी तो I'm just writing diamond. And then we have blue sapphire. Sapphire की स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना. Okay. Now, if you see the Rashi number, ना that's very clear. इसमें तो ये 3 है इस साइड में, तो ये 3 हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. Whether it is 2, 6, 10 लगना, ट्राइन में यही आएंगे. Okay. And either you have 3, 7, 11 राशिस, ये तो इस साइड के हो जाएंगे. इस साइड में इफ यू सी, इधर सन या मून का वो थोड़ा सा होगा, तो इधर 1, 5, 9 लगना. ठीक है, तो इसमें तो हम सन वाला पहनेंगे, रूबी वाला. ओके, या फिर 4, 8, 12, इसमें हम मून वाला पहनेंगे. अदरवाइज मार्स एंड जुपिटर कॉमन रहेंगे. ये है. अब कोई लोग आते हैं, उन्होंने पहन रखा है येलो सफायर और पहन लिया एमरल्ड. अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी, डोंट डू दैट. ये भी पहन लिया और ये भी पहन लिया. ओके, दैट्स बैड. अगर ये असेंडेंट है तो एमरल्ड उसका 7th लॉर्ड होता है, विच इज मार्केश, उसका पहन रखा है. लाइफ वैसे ही खराब चल रही है, लेकिन पंडित जी ने बोल दिया इसलिए पहन लिया. ठीक है, अभी हमने आपको इसीलिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का शुरू का बताया था कि एस्ट्रोलॉजी खराब नहीं थी, ये विजडम जो है ये खराब नहीं है, सिर्फ वाइज पीपल नहीं है, लोगों ने इसको मिसयूज किया है, इसको ढंग से पढ़ा नहीं है. कई बार ऐसे पंडित देखे हैं मैंने जो आपको बता देंगे, अच्छा ये महादशा चल रही है, इसका जेमस्टोन पहन लो. दैट्स रबिश, रॉन्ग. Only trine lords which are the most auspicious in any chart, उनका आप पहन सकते हो. Let us make a chart. अब आपसे पेन एंड पेपर मंगवाया है तो थोड़ा काम करना चाहिए. एक चार्ट बनाते हैं जो 6 का है. तो कैसे बनाएंगे आप एक स्क्वायर बनाइए लाइक दिस. देन आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इन दोनों कॉर्नर्स को, like this. Then one more line, दोनों diagonals को आप कर लीजिए. ओके, एंड देन इनके मिड पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है. rhombus आपका चार्ट. अभी तक हमने 5 तक कर लिए थे, 5 लगन के असेंडेंट तक. तो लेट अस डू इट फॉर 6th, और अब आप ही लोग बताएंगे, सब कुछ आपके सामने रखा है. ठीक है, सो यूज सम टेक्स्ट. So here I'm writing 6. Now where should I write 7? यहाँ पे या यहाँ पे? Yeah.
To the left. To Left the side. left. Absolutely. Anti-clockwise. Left. Anti-clockwise. This is the North Indian chart. So इसमें anti-clockwise चलते हैं, South Indian में clockwise चलते हैं. Just keep writing one ahead. ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने लिखा है वो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको. प्लीज मेक इट ऑल्सो. तो एक चार्ट बनाना तो आ जाएगा. सब जैसे आप सॉफ्टवेयर में एंट्री करेंगे ये 4 चीजों की, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो डिस्प्ले हो ही जाएगा. बट यू शुड नो विच इज द लग्न असेंडेंट. Virgo. Yeah, Virgo, fantastic. 6. सब देखो, सब अभी जेमस्टोन एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं. ओके, तो वर्गो असेंडेंट का चार्ट है. वर्गो असेंडेंट का चार्ट है तो टेल मी वो क्या पहन सकता है. Emerald. ये वाली पार्टी हो गई. करेक्ट. And here 2, 6, 10 is written. Now if you see what is the next, okay, this person can wear emerald. Okay, so let's here for this chart ने बताया या आप लोग बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोगों को आगे है इतना. Now next Blue sapphire. Blue Blue sapphire. sapphire. blue sapphire because of this. Okay, what time is Capricorn owned by Saturn. So blue sapphire. Then which is the lucky stone for this? Diamond. Diamond. Okay. Diamond. Fantastic. लो जी लो, एक्सपर्ट हो गए हैं ना. 2 देखना पड़ रहा है ना, टॉरस बताना पड़ रहा है. We're going to talk about the buzzword of 2020, that is resilience. Please mute. Okay. Anyways, थोड़ा डिस्टरबेंस भी होना चाहिए, आदत होनी चाहिए, नहीं तो हमको तितिक्षा नहीं आएगा, टॉलरेंस नहीं आएगा लाइफ में, वो भी सीखना चाहिए. So this is Venus. Okay, so this diamond. Oh sorry, thank you for correcting. शकुंतला जी आपने बोला है वो मोती पहनने का असर है ना. ये तो वेदांत पढ़ने का असर है अभी तो. करेक्ट, वो मोती मैंने पहना है. एंड सी आई एम वेयरिंग ऑल माय वाइट कलर्स टुडे. ऐसे कि अगर मुझे बताना है कि ये लकी है, आई शुड वेयर लकी कलर. एंड लेट मी शेयर माय ओन एक्सपीरियंस. ओके, नाउ इज दिस क्लियर? कोई और चार्ट इस तरीके से समझाने की जरूरत है और यू विल बी एबल टू डू दिस. इतना तो समझ में आ गया. यस, नो? Yes. Okay, now let me share. Ma'am, it. again over here, blue sapphire, we need to check because it is Yeah, holding you're position right. You're 6 right. also. Yeah, it is 6th lord also. ये blue sapphire के साथ प्रॉब्लम ही है. ठीक है, only with Venus ascendant. इसीलिए ये Venus का पक्का फ्रेंड है. Only with Venus ascendant you can wear blue sapphire. Okay, that is either in 2 or 7. Okay, next 7. Shakuntala ji, thank you. ये 6th लॉर्ड का कॉन्सेप्ट ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये 6th लॉर्ड ये का 6th है, ये 6th हाउस है ना. 1 यहाँ से हाउस होते हैं, 1, 2 ये हाउसेस होते हैं. ओके, हमारी कुंडली में 3 चीजें होती हैं, राइट. एक होती है राशि, एक होते हैं हाउस और एक होते हैं प्लैनेट. ओके, तो हाउस जो है ना, लग्न असेंडेंट, ये हमेशा फर्स्ट हाउस होते हैं. ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ये फिफ्थ होता है, ये 6th हाउस. 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस ये बुरे हाउसेस. ओके, शिप तो थर्ड की ओके. और लॉर्डशिप जो बुरी होती है ना, वो ज्यादा बुरी होती है 3rd की, 6th की और 11th की. 8th की लॉर्डशिप सन एंड मून के केस में थोड़ा एग्जाम्पटरी हो जाती है, उनको फिर भी माफ कर देते हैं. बट 3rd का लॉर्डशिप, 6th का लॉर्डशिप, 11th का लॉर्डशिप इज बैड. वो तो फिर कभी कोर्स करोगे ना तो समझ में आएगा. 11th हाउस अगर असेंडेंट हो, 11 मतलब ये मतलब सैटर्न राशि हो, 11 नंबर हो असेंडेंट. वो आ रही है ना अभी आगे. मैंने एक एग्जांपल लिया अमिताभ बच्चन का,
तो वही मेरा क्वेश्चन ये था कि 10 जैसे डिस्कस करेंगे। वाला हाउस वो या तो बता होता रही है। हूँ, उस पे आ रही हूँ। अभी 11th का है, एक एग्जांपल लिया है मैंने, और उस सेलिब्रिटी को सब जानते हैं और सबको पता है वो कितने जेमस्टोन पहनता है, एक भी नहीं, डबल डबल। ओके, सो लेट अस सी। सो आई थिंक ऑल दिस इज क्लियर। तो ये हमको अभी नहीं जानने की जरूरत। हाँ, आई वाज जस्ट गिविंग वन ऑफ माय एग्जांपल कि एक टाइम कि मेरे 10th हाउस में केतु है, मैं थोड़ी में ऐसे बातें भी करनी चाहिए। सो मेरी जॉब शुरू में बहुत जल्दी जल्दी चली जाती थी, एवरी ईयर मेरे को जॉब चेंज करनी पड़ती थी। देन आई जस्ट रिमेम्बर, कई बार क्या होता है कि इवन इफ यू डू पूजा पाठ एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, अगर भगवान अलाइन में है ना, तो आपका अपने आप ही ऐसा ही हो जाएगा। आई डिडंट नो दैट। एक इंटरव्यू 2004 में जब मैं गई, तो मैं व्हाइट सूट पहन के गई, मुझे अच्छा भी लगता था, बट दैट टाइम मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी नहीं थी, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे लिए व्हाइट कलर लकी कलर है, बिकॉज आई एम स्कॉर्पियो असेंडेंट, को अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो दैट डे व्हाइट सूट पहना था, और दैट वाज माय लास्ट इंटरव्यू, लास्ट एंड फाइनल इंटरव्यू। तब वो जब मैंने कहा, मेरा ये 10th में केतु होने की वजह से दैट गिव्स स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, इसलिए ये सब में आ गई हूँ मैं। तो जो मेरी हर साल जॉब जाना, ये तो इज द प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट ऑल्सो। तो प्रोफेशन का वो अच्छे से डिटैचमेंट उसने सिखाया मुझे। कई बार मेरे को लाइफ में जॉब चेंज करने पड़े, बट दैट वाज एक 2004 वाला जो जॉब मेरा इंटरव्यू हुआ, दैट वाज फैंटास्टिक। उसी जॉब में मैंने 10 to 12 years एज एन HOD फाइनल रिटायर हुई, मतलब मैंने वहां से खुद ही छोड़ा, एंड दैट वाज अ वंडरफुल जॉब फॉर मी। अभी तक भी मुझे वो याद है। तो तब तक मुझे कुछ एस्ट्रोलॉजी और ये सब नहीं आती थी, बट दैट आई वाज वेयरिंग व्हाइट, एंड लेटर ऑन जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, तो आई न्यू ओके ये। सो दैट इज व्हाई फॉर टुडेस सेशन आई डिसाइडेड ओके, लेट मी go with the white. And for this cancer sign, if you read those colors जो मैंने शेयर भी करे थे, कहीं ना कहीं लाइट पिंक भी बोलते हैं, बाई चांस थोड़ा सा लाइट पिंक यहाँ पे भी था। सो इट इज परफेक्टली, थोड़ा सा जोक, मतलब थोड़ा क्या, एस्ट्रोलॉजी थोड़ी ना टफ चीज है। अगर हम बीच में जोक नहीं मारेंगे, ये सब नहीं करेंगे, तो मजा नहीं है। ऐसे आप लोगों ने काफी सीख लिया, अच्छा सीखा है। आई गिव passing marks to all of you. Let us come back to the slides and see quickly. फटाफट देख के फिर मंत्रों को करके then we'll finish it up. Okay. So this is the Leo ascendant, और अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। ये वर्गो ascendant का आपने खुद ही बता दिया। So this was done. Emerald diamond. Excuse me, ma'am. I want to. मेरे को थोड़ी एस्ट्रोलॉजी आती है। For a 5-number लगन. Yeah. Your Mars is also a Badkesh. Yeah, correct. But can you wear? Yeah, you can wear. You can wear. Check it. It is working perfectly fine. And for when it is a Badkesh, I also generally don't give it. But give it. It is working perfectly fine. अभी मैंने अपने ब्रदर को पहनवाया है। Badkesh होते हुए भी? Yes. All right. 4-5 months हुए हैं and wonderful results are coming. Okay, thank you, ma'am. Thank you. लक भी तो है ना, लक भी तो है। You are absolutely right, बादकेश है, लेकिन ये लक है, देता है। और वो क्यों पहनाया, कहीं ना कहीं मार्स कहीं दबा हुआ था, राहु के साथ है, तो राहु उसको, मार्स को पूरा खुल के नहीं आने देना चाह रहा था। तो I have a Taurus, मेरा moon exalted है, तो I have got a 2-number लगन. But in my 8th house, both Jupiter and Saturn are sitting in the 8th house. That's why my astrology also is, I'm practicing for quite some time now. So see, this is your ascendant. Now, this is your ascendant. Here is your Jupiter and? No. Moon, exalted moon हो गया ना यहाँ पे. मेरा moon है यहाँ पे. तो यहाँ पे होगा लग्न में. हाँ, तो नहीं, 8th house में मैं कह रही हूँ, मेरा Jupiter Saturn 8th house में बैठा है. Okay, यहाँ पे बैठा है Jupiter Saturn. So that gives you astrology too. Yeah, definitely. It is a piece of underground knowledge. सारी knowledge से आती है. To be very frank, जब ट्रांजिट में मेरा शनि 8th हाउस से जा रहा था, होने को ढैया थी,
but हाँ that जी। time when I started studying past life regression, ma'am से वही। Yeah. तो My तो Jupiter Saturn में I've done everything, and I Good. did give her, even Tripti ma'am also knows, I did a course with her. I had a very great spiritual experience also because of this. But otherwise in Chalit, my Saturn moves up to the 10th. Okay, then that is fantastic. अच्छा, Then it goes up. Then it हाँ, becomes हाँ, okay. Yeah. हाँ, good. Okay, now ये Libra ascendant का चार्ट है 7, again Venus इसका अलग ascendant lord होगा। तो see Saturn बेस्ट फ्रेंड है। जब भी पहले 2 वाले के लिए भी Saturn राजयोग कारक प्लैनेट था, इसके लिए भी राजयोग कारक प्लैनेट, they can bear, okay? Only in case अगर Saturn यहाँ बैठा है, then it's dangerous position. मारक भी हो गया, तो थोड़ा सोच समझ के पहनना है। इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि वो एमेथिस्ट या कुछ और ट्राई कर लेना चाहिए, ठीक है? दैट इज जस्ट वन कंडीशन आई एम सेइंग कि मेष राशि में सैटर्न नीच का होता है, अदर Debilitated, हाँ जी। डेबिलेटेड होता है, फिर मारक प्लेस में भी बढ़ गया। वो आपको ऐसे नहीं है, फाइनली काफी चीजें देखनी चाहिए, वो स्पेशली इन केस ऑफ ब्लू सफायर, बाकी तो चल जाता है, ओके? सो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लिब्रा असेंडेंट के लिए वी कैन हैव ब्लू सफायर जो तो राजयोग का प्लैनेट है, अदरवाइज एमरल्ड यू कैन वियर एंड डायमंड यू कैन वियर। इज दैट क्लियर? क्विकली अब हम जा रहे हैं। ये स्कॉर्पियो असेंडेंट है जो कि मैंने अपना बताया था, तो लक लॉर्ड इज ये 4, that is moon, and white color you can wear, and pearl can be worn. Okay, what are the other gemstones you can wear? Anybody quickly? Coral and yellow sapphire. Yes, pearl, yellow sapphire, and red coral, they all can. Next is Sagittarius ascendant. Quickly you can tell Sagittarius ascendant में Yellow sapphire, red Yes. coral, Jupiter, and, you can wear ruby. yellow sapphire. Yeah, Ruby. Jupiter is the Lagna Lord, so yellow sapphire and red coral and ruby. red coral and ruby. Fantastic. अच्छा, ये घर में expert है. Good. Next is Capricorn ascendant. Emerald, diamond, Blue sapphire, diamond, and Diamond. emerald. Blue sapphire. Emerald. Correct. अब क्योंकि ये कंसेक्यूटिव 2 का होता है ना Saturn, वो एक अच्छा होता है तो दूसरा खराब हो जाता है, तो थोड़ा डाउट रहता है, बट इट कैन बी बोर्न। सो डायमंड, एमरल्ड, ब्लू सफायर, लिटिल रिस्की, द सेकंड लॉर्ड इज मारक, वो देता है उसका। हाँ, अब आप एक्वेरियस का पूछ रहे थे, एक्वेरियस असेंडेंट के लिए यू कैन टेल। Blue sapphire, emerald, and diamond. Emerald and diamond, correct. Now, fire का other sign is in 12th house. 12th house is also hospitalization. Okay? तो एक तरफ से ये इसको बढ़ाएगा, लेकिन ये इस भाव के पे रिजल्ट देगा. That is the house of loss, expenses, hospitalization, other things also. Okay? And this is the ascendant for Amitabh Bachchan. उसका भी next slide में भी है, तो मैं बताती हूँ कितना पहनता है और उसके क्या रिजल्ट्स है. बोथ द रिजल्ट्स कैन बी सीन. एक चीज और बताइए, हाँ, जैसे 11th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, जैसे सैटर्न हाँ, जी वो 11th अच्छा है, वो अच्छा है, वो लेकिन कंबस्ट है। तब तो पहन लेना चाहिए. पहन के ट्राई करो. नहीं, मैं पहन रही हूँ, तो मुझे पहनना हाँ, तो चाहिए। पहनना चाहिए. कंबस्ट है, सैटर्न की महादशा भी चल रही है। पहनो. कुछ टाइम से पहना तो मैंने काफी सालों से हुआ है, लेकिन आजकल कुछ चोट वगैरह लग रही है मुझे बार बार। बस वही ना, हॉस्पिटलाइजेशन इसलिए तो बेस्ट है. या इसका जो सब्स्टिट्यूट है, सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है ना 12वें घर पे, वो भी कर रहा है, और वो बता दिया ना उनको चोट लग रही है, ये सब वही बार बार लग रही है। चार्ट पे भी आ रही हूँ, वही है. ओके, एनीवेज इसका एक एमेथिस्ट भी है कुछ, उसको आप ट्राई करो.
और आई वुड सजेस्ट सैटर्न गायत्री मंत्र पढ़ो, बेस्ट है। जब कुछ जेमस्टोन नहीं जमता, सैटर्न गायत्री मंत्र पढ़ो, ब्लू कलर के कपड़े पहनो। नहीं, सैटर्न मेरे को जम रहा था काफी सालों से, और अभी 1-2 सालों से मुझे लगता है सैटर्न की महादशा चली है, तब से मतलब कोइंसिडेंस है, ये पता नहीं क्या है। उसके रिजल्ट्स देगा, ऐसे नहीं है। तब भी वैसे भी सैटर्न इसी में है अभी, और पिछले 2 सालों 12वें से घर में, 12वें घर देगा, में। वो देगा। अच्छा, इसमें आपकी राशि भी देखनी पड़ेगी। आपकी राशि क्या है, जन्म राशि क्या है? जन्म राशि तो ये टॉरस है। टॉरस है। टॉरस है तब तो सैटर्न तो इतना वो नहीं है, ठीक है। तो आप, क्योंकि वो बीइंग 12th लॉर्ड है ना, तो वो 12th के रिजल्ट्स देगा। एंड आई नो पिछले कुछ दिनों में आप बीमार भी रहे थे, राइट? मुझे पिछले 2-3 महीनों से इतनी बड़ी चोट लग चुकी है, लास्ट ईयर भी फ्रैक्चर। एमेथिस्ट ट्राई करो, इसको हटाओ, और नहीं तो शनि गायत्री मंत्र इज द बेस्ट, वो आप करो। सफायर निकाल दो कुछ दिनों के लिए। हाँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसको मंत्र चैंटिंग करते हुए। ओके, नाउ दिस इज डन। ये आप लोगों ने बता दिया। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है ब्लू सफायर लिटिल रिस्की बिकॉज 12th लॉर्ड। ओके, नाउ द फाइनल लास्ट इज स्पाइसेस, और इसका भी आप लोग फटाफट बता दीजिए। जुपिटर का है ये, जुपिटर का सफायर, येलो सफायर, ये मून का है, हो गया। ये मार्स का है, वो हो गया कोरल रेड कोरल। वेरी गुड, दिस इज डन। सो ऑल 12 लग्नास, और किसी भी बंदे की चार्ट में ये 12 लग्नास ही होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। So this you will decide. You are not considering a single planet here. Planet कौन सा कहाँ बैठा है, it is not matter. It doesn't matter. Okay? अच्छा, एक और चीज है, हमको टाइम ऑफ बर्थ भी काफी एक्यूरेसी से पता होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों आप ही में से मैं किसी के चार्ट पे वर्क कर रही थी, और वहां पे मुझे मिल रहा था स्कॉर्पियो असेंडेंट। ओके, बट टाइम इज नॉट क्लियरली नोन। ओके, कि ऐसा बोला कि मॉर्निंग 6 AM का टाइम है, और एक्यूरेट टाइम नहीं पता है, और सनराइज से पहले का है। आजकल के दिनों का ही बर्थडे था, तो 6:57 o'clock पे आजकल बर्थ वो सनराइज होता है, तो उससे पहले 6 AM पे सनराइज हो रहा है। बट आई हैव टू चेक, कहीं वो थोड़ा सा और पहले हुआ 5:50, और कहीं ये असेंडेंट हो गया, तो फिर चार्ट गलत हो जाएगा। तो जब भी ऐसा बॉर्डर हो जो कि एक दूसरे के फ्रेंड नहीं है और बॉर्डर पे आ रहे हैं, तब आप जेमस्टोन को सोच समझ के पहनाएंगे। ओके, नाउ लेट अस से 1 and 2 है, तो आपको सोच समझना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के डिफरेंट हो जाएंगे। 2 and 3 है, डजंट मैटर, दोनों केसेस में सेम ही पहना जाएगा। 3 and 4 है, आपको सोचना पड़ेगा। 4 and 5 में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, यू कैन वेयर, दो तो कॉमन ही होते हैं। 5 and 6 के बॉर्डर पे है तो सोचना पड़ेगा। 6 and 7 के बॉर्डर में है, डजंट मैटर, बॉर्डर पे है, डजंट मैटर, इन दोनों का सेम होता है। बट 7 and 8 है तो मुझे सोचना पड़ रहा है। तो कई बार मैं जो रिप्लाई है वो टाइम से देती हूँ, दैट्स ओके, आप टाइम लीजिए, मगर किसी को गलत मत बताइए। सिमिलरली 8 और 9 का इट्स ओके। 9 and 10 थिंक ट्वाइस। 10 and 11 ओके फाइन। 11 and 12 है, अगर कभी कभी बॉर्डर में होता है, टाइम अननोन है, तो फिर हमें सोच समझ के जवाब देना चाहिए। नहीं तो बहुत जरूरी भी नहीं होता कि जेमस्टोन पहनो, आप मंत्रा चैंटिंग कर लो इस तरीके से। ऑल राइट, आई थिंक दिस वाज, थोड़ा सा तो आपको नॉलेज बढ़ी। और ये तो है कि आप एंटी पार्टी तो नहीं पहनेंगे, यह अमिताभ बच्चन का चार्ट है जो भी। जी, आई हैव वन क्वेश्चन हियर। से जब मार्स के लिए हम रेड कोरल देते हैं, राइट? सो अगर से मार्स बहुत स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली हम कोरल नहीं पहनाएंगे बिकॉज ऑलरेडी स्ट्रांग है, राइट? फिर जरूरत नहीं है ना, सिर्फ ओनली इन बट क्योंकि अगर वो स्ट्रांग होने की वजह से कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, तो क्या व्हाइट कोरल उसको बैलेंस करता है? I have no idea of this white coral. Okay. No idea. ये प्योर जेमस्टोन्स का ही आइडिया है जो ये है। 7 और 8 and 9 गोमेद और लेसुनिया भी I never searched. Okay.
आप लोगों ने ये अमिताभ बच्चन का चार्ट है और ये काफी एक्यूरेसी से ही है 4 PM इलाहाबाद का इनका बर्थ। और ये काफी फेमस, लाइक जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते थे तब भी सब यही बात करते थे कि इसके 8th हाउस में 4 प्लैनेट्स हैं, तो वैसी ही इनकी लाइफ रही भी। नाउ कैन एनीबॉडी ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट इज द असेंडेंट और कितना एक्चुअल कैसे लिखा होता है? वेयर इट इज रिटन? 11 फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस AS केतु का कौन सा है इसका? Aquarius लिखा है 11। ओके, 11 नंबर। हाँ, तो ये इनका असेंडेंट है। नॉर्मली AS लिखा होता है असेंडेंट के लिए, तो एक्वेरियस इनका असेंडेंट है। हु इज द लग्ना लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड? Saturn. Okay, Saturn is posited here, फ्रेंड के हाउस में है। Still, Saturn is also the 12th lord, right? Still, आप सबको पता होगा कि बहुत लोग बहुत कॉमनली बात करते हैं कि अमिताभ बच्चन 2 नीलम पहनता है। Have you listened this? Heard this? Yes. 2 नीलम पहनते, ठीक है, जबकि Saturn थोड़ा वेल प्लेस्ड है और लगन को देख भी रहा है, ठीक है, तो वो मजबूत बना रहे, लेकिन वो है, उसको कुछ चाहिए, सक्सेस चाहिए, जो भी चाहिए वो पहनता है, ठीक है। नाउ सैटर्न इसका 12th लॉर्ड भी है, ये भी एक रीजन है कितनी बार हॉस्पिटलाइजेशन। 12th हाउस इज हॉस्पिटल मेनी टाइम्स, और उसके एक रीजन ये भी है 8th हाउस इज ऑल्सो फॉर क्रॉनिक डिजीजेस। तो देयर आर सो मेनी प्लैनेट सिटिंग, इनके भी रिजल्ट्स आते हैं। सो कहीं ना कहीं सैटर्न इसको फेम जो भी है वो सब दे रहा है, वो ठीक है, बट इट इज गिविंग दिस हॉस्पिटलाइजेशन ऑल्सो। बट क्योंकि लग्न को मजबूत कर रहा है तो हो सकता है वो हॉस्पिटल से बचा भी रहा है। इट कुड बी लाइक दैट। ओके, अनदर थिंग इज यहाँ पे कोई केतु बैठा है, तो केतु एंड राहु तो आई नेवर सजेस्ट। अब सपोज यहाँ पे है ये कौन, मून, आप कभी मून का जेमस्टोन नहीं बताएंगे, करेक्ट इट? क्या क्या जेमस्टोन ये पहन सकते हैं? नीलम इन्होंने पहना है, फाइन, ठीक है, ब्लू सफायर, देन डायमंड एमरल्ड, ये सब ये पहन सकते हैं, बाकी जेमस्टोन ये नहीं पहन सकते। सो आई जस्ट वांट यू टू क्लियर दैट ऐसा नहीं कि ये 9th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है उसका जेमस्टोन पहनेंगे, नो 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 नो, यू हैव टू जस्ट सी द साइन। वो बहुत छोटा लिखा होता है, बट उसी के लॉर्ड का इट इज लाइक दिस। सो लेट अस चैंट द मंत्रस, 9 मंत्रस। आप लोग सब मेरे पास एक एक वर्ड बोलेंगे, तो उसके साथ हम फिनिश करेंगे। पूरे 9 प्लैनेट्स के 9 गायत्री मंत्रस होते हैं। ओके, नाउ प्योर गायत्री मंत्र शुड नॉट बी चैंटेड इन द इवनिंग आफ्टर सनसेट, वो नहीं बोला जाता, बट ये जो प्लैनेट के गायत्री मंत्रास हैं ये बोले जा सकते हैं। दीज आर वेरी सेफ एंड गुड टू बी चैंटेड। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सूर्य गायत्री मंत्र। ओम ओम भास्कराय विद्महे दिवा कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। और आपके लिए एक और बढ़िया न्यूज ये है कि ये सारे मंत्र बहुत सुंदर आवाज में गा करके, अपने ग्रुप में है राजश्री भट्टाचार्य, है ना, अभी वो एडवांस वाली ट्रेनिंग में भी गई थी, जो लोग वहां पे थे, तो उन्होंने इतना सुंदर गा करके यूट्यूब पर डाले हुए हैं, तो ये आपको गाए हुए फॉर्म में भी मिल जाएंगे, आप उनको सुन भी सकते हैं। सिमिलरली ये चंद्र गायत्री मंत्र, ओम पद्मध्वजाय विद्महे हेमा रूपाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। एक एक बार हम सब बोलेंगे ना, चाहे मन में बोलो कैसे भी बोलो, तो एटलीस्ट
कुछ तो प्लैनेट्स की ब्लेसिंग्स हमें मिले, इवन एक बार भी बहुत अच्छा होता है। 5 times इज गुड, डेली 9 times 9 को बोल लो तो मल्टीविटामिन कैप्सूल मिल गए आपको, दैट्स इट, एंड एकदम सेफ। मंगल का है ओम ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। यहाँ पे नीचे इनके मीनिंग भी दिए हुए हैं, क्योंकि जब तक मंत्र का मीनिंग हमें नहीं आता है ना, मजा नहीं आता है, तो वो मीनिंग भी आप पढ़ करके कर सकते हैं। और आजकल के न्यू जनरेशन के बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ पाते तो इंग्लिश में भी प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा ना। बुद्ध गायत्री मंत्र ओम गज ध्वजाय विद्महे सुख हस्ताय धीमहि तन्नो बुद्धे प्रचोदयात्। दिस इज द बेस्ट मंत्र। कुछ भी नहीं समझ में आए, ये सबको करना चाहिए। दी बेस्ट मंत्र गुरु गायत्री मंत्र, इट गिव्स एवरीथिंग, प्लीज डू इट डेली। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे करुणी हस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। शुक्र गायत्री मंत्र ओम ध्वजाय अश्वध्वजाय विद्महे धनुर हस्ताय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। शनि गायत्री मंत्र ओम ध्वजाय विद्महे खड़ग हस्ताय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। किसी के भी 7:30 ही चल रही हो, किसी भी शनि की ढैया चल रही हो, ये मंत्र करते रहिए। ये मंत्र इवनिंग में भी किया जा सकता है, इवन आफ्टर सनसेट यू कैन डू इट एंड इट इज वंडरफुल। ओके, और इसी तरह से चलो राहु गायत्री मंत्र भी फटाफट कर लेते हैं। ओम नाग ध्वजाय विद्महे पद्म हस्ताय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। केतु गायत्री मंत्र ओम अश्वध्वजाय विद्महे शूल हस्ताय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। Okay, now this is one mantra जो कोविड में मैंने ही नहीं, मेरे बहुत फ्रेंड्स ने किया और बहुत फायदा हुआ, और अल्टीमेट मंत्र है फॉर हीलिंग। I also used it again this time for my brother बजा के, और ठीक हो गया। It works wonders। ठीक है, सो इसको आप लोग चैंट करिए और अपने जिंदगी में भी इसको ले लीजिए 11 times 24 times मैक्सिमम, 1 माला जितना आपका हो, कोई एक मंत्र आपको होना चाहिए। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमय विनाशनाय
त्रिलोक्य, त्रिलोक्य, नाथाय, नाथाय, श्री महाविष्णवे श्री महाविष्णवे नमः. So, thank you. शकुंतला जी, I have a question. हाँ जी. कई बार ऐसा होता है जैसे we wear a stone with all cleansing and everything, उसके बाद कभी कभी निकालना पड़ता है, let's say ऑपरेशन के लिए गए, or sometimes you're wearing something, so to put it back, should we do the cleansing again, and how to energize the stone once you're wearing it? वही तरीका है. आप इसको रात को, वही सारा जो मैंने बताया था, पहली रात को, जो भी डे है, जो भी जेमस्टोन है उसका एक डे है, तो उससे पहली रात को रॉ मिल्क में, फ्रेश मिल्क में, कच्चे दूध में आप उसको भिगो के छोड़ दीजिए. सुबह विदिन द 1 hour ऑफ सनराइज उसको अच्छे से नहा धोने के बाद में उसको अच्छे से साफ करिए. फिर नॉर्मल पानी से साफ करने के बाद में अगर आपके पास गंगा जल है तो उससे भी आप धो लीजिए. और फिर जो भी आपका पूजा का स्थान है वहां पे रखिए धूप अगरबत्ती जो भी आपको करनी है, और उस प्लैनेट का जो रेलिवेंट गायत्री मंत्र है उसको मिनिमम 11 टाइम्स, अगर कर सकते हो तो 108 टाइम्स एक माला करके पूरी श्रद्धा और फेथ के साथ पहन लीजिए. जितना आपको फेथ होगी इट वर्क्स, अगर फेथ नहीं होगी इट डजंट वर्क. ये राइट और लेफ्ट हैंड का भी कोई रेलेवेंस है दीदी? हाँ जी, राइट और लेफ्ट हैंड का भी कोई रेलेवेंस है? जनरली मैन के लिए राइट हैंड बताते हैं, लेडीज के लिए लेफ्ट हैंड बताते हैं जनरली. ये है. Excuse me, ma'am. I would like to ask a question. Ma'am, धन्वंतरी मंत्र कितनी बार करना है? देखो, अगेन जब हम 1 माला करते हैं ना, करनी तो 1 माला that is 108 टाइम्स, लेकिन जब हम 1 माला करते हैं तो वी बिकम मैकेनिकल. बिल्कुल उसमें मन नहीं लग रहा है, तो टाइम पास हो रहा है या एक फॉर्मेलिटी हो रही है, वो नहीं करना चाहिए. ओके, यू बिगिन विद 11 टाइम्स, उसमें पूरा मन लगता है, पूरा मन लगता है, पूरा आपकी इंटेंशन वहां पे लगी हुई है. 11 मतलब फेथ, फीलिंग इन, वो भी भगवान जो है ना हमारी भावनाएं भी देखते. ठीक है, अपने अभी ग्रुप में भावना भी है तो वो भावनाएं भी देखते हैं, तो और अंदर से होनी भी चाहिए. तो 11 भावना अच्छी है, वेल एंड गुड, लेकिन 10 बार में भी नहीं आई हुई है तो फिर वो बेकार. तो बताते हैं 11 टाइम्स, देन इवन 20 टाइम्स भी बताया जाता है. सो एंड देन लेटर अगर आपको मजा ही आना लग जाए तो 108 टाइम्स करना चाहिए. साथ ये होता है, ये मंत्र क्योंकि कोविड में 2 साल तक बहुत किया था, अभी ये आदत मैं मंत्र जब पाक कुछ और कर रही हूँ तो सडनली ये वाला मंत्र ही मेरे को चलने लगता है. तो नॉर्मली पीपल से कि दैट शुड बी 1 मंत्र जिसको आप सिद्ध कर लो. ठीक है, कर सकते हो आप इसको, एंड इट वर्क्स वंडर, नो डाउट. मॉर्निंग में नहाने के बाद कर सकते हैं? हाँ, नहाने के बाद कर सकते हैं. इवन मैं तो बाद में शाम को तक कभी भी कर सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले यू कैन डू इट. गुरु गायत्री मंत्र करने के लिए मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम. पैटर्न का गायत्री मंत्र इवन सनसेट के बाद में किया जा सकता. ये डिजीजेस के लिए होता है, जो हमें डिजीजेस लगती हैं. डिजीजेस से ओवरकम होने के लिए धन्वंतरी मंत्र है. धन्वंतरी है, आपको पता होना चाहिए कि जब समुद्र मंथन हुआ था, ओके, दीपावली वाले दिन लक्ष्मी थी, उससे 2 दिन पहले धन्वंतरी आता है, धनतेरस आती है, उस दिन धन्वंतरी निकले थे. इनके हाथ में अमृत का कलश है. आज मैंने फोटो नहीं दिखाई है, जैसे इनकी पिक्चर होती है, आप देखेंगे गूगल पे तो मिल जाएगी. तो इनके हाथ में एक अमृत का कलश है, तो ये अमृत का कलश लेके आए थे. वही अमृत जो है वो देवताओं में बांटा गया था. राहु केतु तो एक राक्षस था जिसने भानु का नाम था ऐसा कुछ करके, स्वर भानु नाम से एक राक्षस था, असुर था, उसने पी लिया. तो जब देखा विष्णु भगवान ने उसकी गर्दन काटी तो सिर बन गया राहु और धड़ बन गई केतु, मगर
क्योंकि अमृत पी चुके थे तो उनका वो नहीं हुआ। और बेसिकली धन्वंतरी जो है इन्होंने आयुर्वेद लिखा है। इनका जो पिक्चर देखोगे उसके एक हाथ में आयुर्वेद, तो पूरा ये एक्चुअली इनके देवता है, तो आप पहन सकते। शकुंतला जी, ब्लू जर्कॉन क्या रिप्लेसमेंट है, किस स्टोन का रिप्लेसमेंट है? जिरकॉन, ब्लू जर्कॉन, ब्लू हो सकता है, आई हैव नो एग्जैक्ट आइडिया, इट कुड बी फॉर ब्लू सफायर, बिकॉज वाइट सफायर जो है एक पिक्चर ही मैंने दिखाई थी उसमें दैट इज फॉर डायमंड, ठीक है। सो बेसिकली इट इज कलर वाइज, इट कुड बी फॉर दिस नीलम। हाँ, नीलम। I think it's called Neeli also. It's called Neeli also. हाँ. Yeah, because I'm wearing it. I was wanting to check. It was not there in the list. अच्छा हाँ, आज के सेशन के बाद में इफ अगर आप कहीं से भी कॉन्ट्राडिक्टरी वाले पहन रहे हैं ना, प्लीज फर्स्ट मेक श्योर व्हाट आर द जेमस्टोन्स यू कैन वेयर, और जो जेमस्टोन आप नहीं पहन सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट विद चैंटिंग दिस मंत्र आप उनको उतार दीजिए। एक और चीज पूछनी थी कि डायमंड इज आपने जैसे बोला वो जेमस्टोन की तरह भी यूज होता है, बट हम यूजुअली डायमंड्स पहनते हैं, राइट? वी वेयर डायमंड्स जस्ट एज एन एंगेजमेंट, और सो हाउ देन, आई मीन इज उसको भी निकाल देना चाहिए बिकॉज आपने बोला इट काइंड ऑफ क्लैशेस। आप इसको ट्राई करके देखिए, ठीक है। कई लोग, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा डायमंड पहनने का चलन हो गया है, बहुत ज्यादा, तो आई नॉर्मली जो पीपल, अब उन्होंने खरीदे इतने महंगे हैं, तो आई जस्ट से कि ओके आप कोई पार्टी में जाते हो उससे पहले जाके पहन लो और आ करके उतार दो। इट बी डन लाइक दिस। लेट मी टेल यू, एक टाइम था जब लाइक पहले गोल्ड की आती थी, फिर डायमंड की ज्वेलरी आई, तो मैंने भी कोई कानों के छोटे मोटे पहने थे डायमंड के। दिनों में एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रही थी, सडनली आई रियलाइज कि ये पहनने के बाद मैं थोड़ी बीमार रहने लगी, बिकॉज फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट डायमंड इज मार्केश, ओके, दे शुड नॉट वियर इट। एंड फिर मैंने उसको उतार के रख दिया एंड आई वाज फाइन। सो इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। अगर आपको नहीं सूट करता, अगर आपका असेंडेंट नंबर 1 है, नंबर 1 वाली राशि का है, या 4 का है, या 5 का है, या 8 है, या 9 है, या 12 है, ये 6 हो गए ना, तो आपको डायमंड नहीं सूट करता है, नहीं पहन। अदरवाइज जो अदर 6 असेंडेंट है, दैट इज 2, 3, 6, 7, 10, 11, उसमें सूट करता है, वो लोग पहनो बेस्ड ऑन दैट। मैम वन क्वेश्चन, वन क्विक क्वेश्चन, जैसे मेरा हॉरोस्कोप में फर्स्ट से लग्न जो आप बोलते हो ना, वो फर्स्ट से ही स्टार्ट हुआ है। उसमें 1 नंबर है, पर हाँ, पर उसमें कोई राशि नहीं है, मतलब वो खाली है, प्लैनेट नहीं बैठा है, राशि, हाँ सॉरी, कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, बट आई वेयर डायमंड्स, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, नहीं बेनिफिशियल है। हाँ, मार्केश है, टोटल मार्केश है, 2nd लॉर्ड है, 7th लॉर्ड। बिकॉज मुझे माइग्रेन थोड़े रहते हैं, और मुझे कॉलेज टाइम में ही मम्मी ने डायमंड का कान में दिया था। आप विद ड्यू रिस्पेक्ट डायमंड को, ओके, और उसका शुक्र गायत्री मंत्र करिए, ठीक है, एंड देन सी द डिफरेंस। ओके, वो मेरी एंगेजमेंट रिंग भी डायमंड है, तो मैं निकाल दूं, क्योंकि डायमंड मुझे पसंद बहुत थे, बट वो अभी आपने वो आप पूछ के निकालना, मतलब थोड़ा कंसेंट भी होना चाहिए, ठीक है। कई बार टच नहीं होती है, इन दैट केस चलता है, जैसे आपने किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने से कर दिया और आपके स्पाउस आपसे नाराज हो जाते हैं, देन दैट इज नॉट गुड। अदरवाइज हम नहीं रिकमेंड करते एरीज असेंडेंट। शकुंतला जी, I also मैम की कोई आपने one only one, हाँ रोहिणी। हाँ, तो जैसे मैंने मेरा एक अंगूठी थी रूबी की, वो गुम हो गई, लाइक आई वाज वेयरिंग इट फॉर इयर्स, एंड वो मेरे अपने घर पे गुम हो गई, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दैट, कि उसका काम खत्म हो गया कि मैनी पीपल से लाइक दिस, और मैंने खुद देखा है कई बार। एक वर्गो असेंडेंट है, इनके लिए बहुत अच्छा होता है पन्ना, बेस्ट देता है इसमें, ठीक है, बिकॉज 10th लॉर्ड एंड लग्न लॉर्ड,
पर एक बंदे को मैं पहनाती हूँ, घूम जाता है, फिर पहनाती हूँ, घूम जाता है। शायद उसकी किस्मत में नहीं था, अदरवाइज ऐसा नहीं कि उसका काम हो गया। इट वॉज वंडरफुल। और आप खुद देखिए, अगर आपको रूबी और ये अच्छा है और परफेक्टली सेट हो रहा है, आप फिर से बना लीजिए। आई एम अ वर्गो असेंडेंट, और मेरा चोर मेरे घर के सामने से मेरी गर्दन में से चेन खींच गया, वो एमराल्ड वहीं रह गया, इट डिड नॉट Wow. गो। एंड मतलब मैं डर गई, मैंने, वो पकड़ा भी गया चोर एनीवेज। उसके बाद मेरी 3 बार वो चेन खुल गई, बट दैट एमराल्ड स्टेड देयर, सो आई हैव टू वेयर इट। आप तो पहनिए पहनिए, नहीं, वो निकलता ही नहीं है। ascendant, I know. So definitely it makes a difference. Good. शकुंतला जी, हाँ हाँ, बोलिए। आई वांटेड टू आस्क वन थिंग। जो आपने एक पॉइंट बोला कि जिनको डायमंड सूट नहीं करता, ऑफ कोर्स वो जैसे पार्टी में जाते हैं, पहन के गए, आके उतार दिया, दैट्स ओके, बिकॉज फ्यू आवर्स विल नॉट मेक टू मच ऑफ अ डिफरेंस, राइट? और एक बात में, मतलब काफी सारे लोग ये भी मानते हैं कि जब हम रेमेडियल स्टोन डाल रहे हैं, तो जब तक वो 2 रत्तियां उससे ज्यादा का ना हो, तो वो इफेक्ट नहीं देता। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया? 2 कैरेट इम्पोर्टेंट, राइट? तो अगर उससे कम का डायमंड, अगर जैसे जिनको नहीं भी सूट कर रहा और वो सिर्फ एज ज्वेलरी उसको पहन के थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, तो आई मीन इट वुड नॉट इफेक्ट टू मच, राइट? हाँ वो तो अलाउड है ना, मैंने बोला ना। अगर सिर्फ आप पार्टी में जा रहे हो और पहन के आके, वो इतना महंगा उन्होंने पैसे लगाए हैं, खरीदे हैं, तो वैसे तो आप हील पहन के भी तो जाते हो ना, आपको पता नहीं, है। अब जैसे एंगेजमेंट रिंग हो गई, ऐसे आजकल ज्यादातर लोग एंगेजमेंट रिंग अपनी डायमंड की बनाते हैं, इररिस्पेक्टिव कि उनको सूट करेगा या नहीं करेगा। एंड से इफ इट इज नॉट लाइक यू नो द साइज इज नॉट बिग, वो छोटे छोटे स्टोन्स में से बना हुआ है, तो आप खुद ट्राई I'm just करके trying to देखिए। clarify that. आप ट्राई करके देखिए, आपको अगर मेरे को डायमंड सूट करता है मेरा तो लगन है। लगना है तो आप तो पहनो ना, आपको क्या दिक्कत। नहीं, मैं सिर्फ क्लैरिटी के लिए समझना चाह रही हूँ कि जो लोग पहनते हैं, बिकॉज इट्स एक्चुअली डायमंड आजकल बहुत डाला जा रहा है। बहुत डाला जाला है, लेकिन जरूरी ठीक नहीं है, जो चल रहा है वही। राइट। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन, एक शर्मा, 1 मिनट, इनका हाथ काफी पहले से ऊपर था, लेकिन इनको कुछ क्वेश्चन पूछा। Yes, ma'am. I just thought that क्योंकि काफी लोग पूछ रहे थे, मैंने अपना नहीं, हाथ आप ऊपर पूछिए। थैंक यू वेरी मच। तो मेरा एक पहला क्वेश्चन, तो आपने जो मंत्र बोले और जो कहा कि कोई एक सिद्ध मंत्र होना चाहिए, तो ये जो ग्रह और गायत्री मंत्र के बजाय अगर हम बीज मंत्र करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इज दैट ऑल्सो इक्वली पावरफुल? देखो, एक पहले जब तक मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी गायत्री मंत्र की, आई यूज टू सजेस्ट बीज मंत्र, क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी की क्लास में वही बताया गया है। ओके, बट ये जो गायत्री मंत्र होते हैं ना, इनमें एक फायदा होता है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं। मतलब ये प्रोनाउंसिएशन में अगर आपसे मिस्टेक होगी तो उसका आपको दोष नहीं लगता। स्वयं सिद्ध मंत्र का ये फायदा होता है। सो आई वुड रिकमेंड ये वाले ही करने चाहिए। एंड ये मैंने मेरे खुद के नहीं बनाए हुए हैं, मैंने खुद ये लिया है। आई टोटली बिलीव इन नाड़ी ज्योतिष, इफ यू नो। तो वहां पे हर किसी के रेमेडी में प्लैनेट्स के गायत्री मंत्र आते हैं। तो बीज मंत्र तो बहुत छोटा सा है, शॉर्टकट है वो। तो दिस इज अ वंडरफुल प्योरिटी वाला मंत्र है। आई थिंक वी शुड डू दिस एंड इट वर्क्स। तो जैसे if I chant Om Bhurभुवः स्वः in the morning, प्योर so that you are saying you should not do it in the evening. वो जनरली प्योर गायत्री मंत्र के लिए डे टाइम में, एक्चुअली सारे मंत्रों के लिए कहते हैं इट शुड बी डन इन डे टाइम, राइट? पर हमारे भागदौड़ की दुनिया है, तो हम कई बार इवनिंग में भी करते हैं, तो वो प्लैनेट का गायत्री मंत्र तो कर सकते हो, बट जो प्योर गायत्री मंत्र है दैट शुड बी डन इन डे टाइम। And each of these mantra has to be done 11 times, you have mentioned. First we start with 11 times. मिनिमम तो 11 टाइम। Yeah. कभी बहुत ही कम टाइम में भागना है, 5 टाइम्स भी कर लो, चलता है। 5 टाइम्स।
और ये जो 9 के 9 आपको डेली खाने, यानी कि मल्टीविटामिन कैप्सूल की तरह खाने, तो डेली के 9 के 9 मंत्र 9 टाइम्स कर लो। 9 into 9 81, वो भी ओके है। Again, it is not the number that matters, it is the faith that matters. True. Yeah. True. Then second, may I ask? Or? हाँ जी बिल्कुल पूछिए आप। So second question is, my Lagna is also Mithun and my Rashi is also Mercury in the first house along with Moon and Venus. Okay. I have 3 planets in my business first में okay, कपड़ों के बिजनेस में okay? नहीं बिल्कुल ही नहीं। that can suit you. Okay, हाँ बताइए। So I wear a pokhraj since many years. क्यों पहनते हो? किसी ने कुछ 30 साल पहले बोला था तो पहना हुआ है। फाइंड इट आउट कि आपका ये जो लगना है ये एक्यूरेट तो है, कहीं वो गलती से कर्क लगन तो नहीं है? नहीं, परफेक्ट है मेरा। परफेक्ट है, परफेक्ट है। फिर पुखराज आपको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मेरे 3rd हाउस में सैटर्न, जुपिटर और मार्स साथ में है। ठीक है। उनको ये जब हम पंडित लोगों के पास जाते हैं, वो शादी का टाइम होता है, चलो पहना दो, पुखराज पहना दो, गुरु का मंत्र है ना। और आपके केस में 7th लॉर्ड हो गए, ठीक है, 7th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है, बट 7th लॉर्ड इज मार्केश, ठीक है। तो बहुत बार अब यही तो है ना कि यही चीज परमहंस योगानंद जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखी है, और यही चीज युक्तेश्वर जी ने बोली है, अल्प ज्ञान पंडितों को नहीं, लिटरली उनको जो प्लैनेट की महादशा अंतरदशा चल रही है उसी का पहना दिया, नहीं, ओनली ट्राइन लॉर्ड्स आर बेनिफिशियल। तो 7th लॉर्ड इज नॉट गुड, प्लीज रिमूव इट विथ ड्यू रिस्पेक्ट and start chanting Guru Gayatri मंत्र। वंडरफुल। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो लिटरली आगे आप रूम से बाहर जाके देखेंगे तो बिल्कुल सिर के ऊपर येलो कलर का बड़ा मोटा सा स्टार चमकता हुआ दिखेगा, दैट इज जुपिटर। उसको देख के तो जरूर करिए। आजकल मार्स बहुत दिखता है इवनिंग में, ईस्ट में 6 AM पे आ जाता है, 6 PM पे आ जाता है, एंड मॉर्निंग में 6 AM तक दिखता है, पूरा रात को बहुत बिल्कुल रेडिश स्टार। दिस यू कैन सी विद योर नॉर्मल आईज, एकदम आराम से, कोई आपको टेलीस्कोप वगैरह नहीं चाहिए। उनको देख के भी आपको एक बार हाथ जोड़ना चाहिए और एक बार उनका एक मंत्र हो, कुछ भी अपने मन से नमस्कार जरूर कर लेना चाहिए। सो जुपिटर तो बहुत क्लियरली विजिबल। वो तो मैं देवानंद जो ऋषिनाथ से बहुत सालों से कर रही हूँ, वो मंत्र जाप बहुत सालों से कर रही हूँ मैं। और डायमंड एंड इसको पहनने की आपको कोई जरूरत नहीं है, उतारिए विद ड्यू रिस्पेक्ट। देखिए बहुत ऑनर करना है, हर प्लैनेट का हमें ऑनर करना, राइट? कोई विद ड्यू रिस्पेक्ट आप उतारिए एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस इन योर लाइफ। Okay, thank you very Kuntala ji, much. somebody has also asked कि अगर उतारना है तो what do you do with such stones? I think there are a couple of questions in your chat also, if you can just check. पूरी चैट तो मैंने नहीं चेक करी। तो अगर उतारना है तो क्या सेल कर करना सकते चाहिए? हो, सेल कर सकते हो ना, वापस दे सकते हो, आप सेल कर सकते हो। Ma'am, I had a question about this on mantras only. A lot of people use malas ना, जो लंबे लंबे वो करने होते रोटेशंस में। So depending on कौन से planet के लिए कर रहे हैं, बहुत बार होता है कि उसी planet से associated कोई beads वाली माला होती है या उस color की होती है। So does it add value? अगेन नहीं, देखो थोड़ा बहुत तो असर होता है, बट अगेन आप एक कोई माला ले लीजिए और कर लीजिए उससे। अगेन आपका ध्यान इसमें होना चाहिए, इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, दैट वर्क। ओके, इतना ज्यादा टू द पॉइंट पर्टिकुलर होने की जरूरत नहीं है, वो नहीं मैटर करता। इट ऑल मैटर्स इज आपके अंदर की इंटेंशन क्या है, भगवान वही देखते। कई बार मेरे पास माला भी नहीं है तो अंगुलियों पे कर लेते हैं अपन, हो जाती है वो भी। हाँ, राइट? चलो,
शकुंतला जी, आप तो जयपुर में हैं, आपको सारे जेम्स मिल जाते होंगे इजीली। बेस्ट जगह फॉर जेम्स। हाँ कहाँ से हाँ बेस्ट प्रोक्योर कहाँ से कर सकते हैं, इफ यू मैं कैन तो गेट सम सोर्स या फिर देखो मैं हमारे जो एक मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे जेमस्टोन को पहचानने की और इसकी तो नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे रेगुलर ज्वेलर हैं, क्योंकि हम उनको ट्रस्ट करते हैं तो हम उन्हीं से ले लेते हैं एंड गिव्स गुड थिंग। कहाँ पे है ये? जयपुर दिल्ली, में आई नो समबडी। नहीं, जयपुर में ही है। दिल्ली अच्छा अच्छा, then it's okay. वंस अगेन मैं आपको बताती हूँ कि अगेन आप कोई भी जेमस्टोन पहनो, उसको फेथ के साथ पहनो, मंत्र के साथ पहनो। इट इज नॉट द प्राइस दैट मैटर्स, इट इज द दैट मैटर्स। कई बार आप बहुत महंगा नहीं, ऐसे तो अब पुखराज का ही देख लो, 10,000 से स्टार्ट होके लैक्स में आते। कोई कोई लोग दिखाने में बताते भी 1 लाख का पहना है, बड़ा फायदा होता है। भाई तुम अफोर्ड कर सकते हो इसलिए 1 लाख का पहनो, 1.5 लाख का पहनो, आपको कौन मना कर रहा है? ठीक है, बट मैं तो एक पर्ल पहनती हूँ बिकॉज आई नीड ओनली पर्ल। बाकी मेरे प्लैनेट्स आर वेल प्लेस्ड, मुझे वही पहनने की जरूरत। एंड दैट पर्ल हार्डली कॉस्ट मी दैट टाइम 500 रुपीज ओनली, बट दैट्स अ लकी स्टोन, इट वर्क्स। अब मैं क्या करूँ, सबसे सस्ता स्टोन ही मेरे लिए फायदेमंद है, तो मुझे फालतू स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। एंड इट रियली वर्क्स एंड आई नेवर, अब मैं उसको हटाती नहीं, इट रियली वर्क्स। जो काम करते थे उसका अप्रिशिएशन नहीं मिलता था, बट मिलने लगा। दैट इज 9th लॉ। शकुंतला जी, सारे मंत्र जो है हम लोग कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव कि हमारे लॉर्ड कौन सा वो है, सारे जो क्या गायत्री मतलब मंत्र? जो यस, मंत्र आपने 9 के बताया, 9, या 9 के 9 मंत्र विल, इट्स लाइक इससे ऑनरिंग ऑल द प्लैनेट्स, राइट? या ये तो बेस्ट है। अब जैसे जो मेरे फॉरेन के क्लाइंट्स होते हैं, कई बार उनको ये इतना इजीली स्टोन्स भी अवेलेबल नहीं है, वो बोलते हैं कि नहीं जब हम इंडिया आएंगे तो बनाएंगे, दान वगैरह भी वो वहां पे नहीं कर सकते। द बेस्ट थिंग इज आई गिव देम द मंत्र। और 9 नहीं करो तो जो 3 आपके महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही उनके आप कर, बेस्ट है, ये भी ऑप्शन है। और लेडीज हैं तो गुरु गायत्री मंत्र करिए, आपको हर तरह का बेनिफिट मिलेगा, वंडरफुल रिजल्ट। हाँ जी, मैम एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ जी बोलिए। ये एक्चुअली मुझे तो टाइम पता ही नहीं है, पता ही नहीं और है, मदर फादर भी नहीं है, हाँ। तो मैं मतलब मेरे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, प्लीज बताएं। आपके लिए प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते हैं, फिर भी देयर आर मेनी मोर टेक्निक्स, जैसे मैंने अभी नाड़ी ज्योतिष के बारे में बताया था अभी। तो देयर आर टेक्निक्स जिसमें आपके थंब इंप्रेशन के बेस पे भी आपका प्रिडिक्शन निकल सकता है। उसके लिए आप मेरे से बाद में पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए तो मैं आपको बता दूं। Shakuntala, can we also listen to these Gayatri mantras? I mean, all the. हाँ, अगर बोलते नहीं हो तो सुनना भी फर्क पड़ता है। हाँ, तो गुड, हाँ, ओके ओके, चलो। शकुंतला जी, वो जो चैप्टर में एम्यूलेट की बात कर रहे थे स्वामी जी, हाँ हाँ, है ना, तो एम्यूलेट में क्या उन्होंने सारे स्टोन्स डाले होंगे? ना स्टोन डाले ही नहीं थे, तुमने पढ़ा नहीं नीचे, उन्होंने बहुत मेटल लिखा था। इट वाज जो उन्होंने परमहंस योगानंद जी को पहनाया था वो तो सिर्फ सिल्वर एंड लेड था, चांदी और ओनली मेटल, या हाँ मेटल, सिल्वर एंड वो लेड यानी कि सीसा। तो डू यू आल्सो नो मून साइन के हिसाब से कौन सा मेटल किसको सूट करता है? मेटल मेटल तो लिखा था ना, मून आपने सिर्फ सिल्वर और गोल्ड लिखा था। हाउ सिल्वर अबाउट गोल्ड। कॉपर एंड हाउ अबाउट कॉपर इज फॉर सन एंड मार्स, सन का कलर ही कॉपर कलर होता है, सन एंड मार्स के लिए कॉपर पहन सकते ओके टू वेयर और नॉट ओके टू? या अगर आपको सूट करता है जस्ट चेक। So if trine has or the lagna has or the 9th house is one of these planets, then you can wear one of these rashis. राशिस, हाँ। और इसीलिए तो सोचो हमारे यहाँ इंडिया में ये जो गोल्ड पहनने का है, सिल्वर पहनने का है, ये रिवाज है काफी प्योर, तो ये दे ऑल्सो वर्क, वो भी रिफ्लेक्ट। I have actually personally seen myself gravitating towards copper a lot.
And I also see in the colors that you've mentioned for the Rashi, brown, rustish brown. Correct, right? See, the ninth lord जो है, I'm wearing. उसका डायरेक्शन भी वर्क करता है, उसका कलर भी वर्क करता है, ठीक है? आप बोलेगा कोई कि गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी का कलर क्या ले? नाइन्थ लॉर्ड का ले लो, सिंपल. And that also, my stone, my ring broke. तो मुझे तो अगर दोबारा पहननी है, that's Neelam. Should I put it under my pillow for 7 days and check before I wear it, or should I just wear it? I've worn it for a long time. पहन लो, तुम तो पहन लो, तुमको सूट करता है, अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है? चलो. शकुंतला, मेरी 7.5 शुरू हुई. आई एम अ शनि मून साइन. You won't believe it, you know, and it's in the 6th house, right? तो आपने बोला नीलम नहीं पहनना, तो नीलम so my whole wardrobe has become नीला. I go to buy a car, मुझे white हमेशा अच्छी लगती है, but वो नीली कार आई मेरे पास, वो ही थी. Good. That's okay. हाँ, ये सब चलता है, ये सब, क्योंकि 6th में मून साइन है ना शनि का. So I mean I couldn't, you know, आपने बोला नीलम नहीं पहनना, और मैंने वो देखा भी कि वो बहुत खराब था जब मैंने पहना था, तो इसलिए I don't want to wear it. करेक्ट. और अगर 7.5 शुरू हुई है तो 2 दीपक तिल के तेल से पीपल के पेड़ में करने शुरू कर दीजिए एवरी सैटरडे, ठीक है? वो कर 2 दीपक या पर सरसों के तेल में, तो तिल्ली का तेल मुझे कल याद आ रहा है. दोनों चलेगा, दैट्स ओके, ठीक है. बट 2 you said, हाँ 2, या 2. ओके. बढ़ा दीजिए, बढ़ा दूंगी, वो कर रही हूँ. बढ़ा दो. ओके, थैंक यू. The session अभी चलिए, recording. Thank you so much, Shakuntala ji. Thank you. Welcome. Beautiful, it was nice. Welcome.